کریں میٹنگ. ساتھی صاحب آپ نے بہت ہاتھ روک کے کھائے. اچھا جی, اب یہ ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہے یہ ہمارے دونوں آنریبل اسپیکر صاحبان اس کو کنڈکٹ کریں گے, اور یہ ہے بیسکلی ہمارا انسٹیٹیوشنل ریفارمز اینڈ ری وزٹنگ پریکٹس اینڈ پروسیجرز. تو اس میں پہلا سبجیکٹ ہے جی شیئرنگ آف ڈبیٹس. اس میں ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم جو بھی ڈبیٹ ہوتا ہے وہ نیشنل اسمبلی آپ لوگوں سے شیئر کریں, اور آپ لوگ آپس میں سب اسمبلیاں کریں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہاں ہر صوبے میں ہاٹ ٹاپک کیا ہے, اور ہمارے جو یہاں ممبران بیٹھے ہیں وہ اس کے اوپر بھی ان کو بھی آگاہی ہو. جو اگزامپل ہم لیتے ہیں کے پی میں اگر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو اس ڈسکشن سے ہم فائدہ اٹھا کے اس ڈسکشن کی کنٹینیوٹی یہاں بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح پانی کا سندھ کا جو ذکر کیا تھا شاہ صاحب نے, تو وہ پانی کا ایشو وہاں جس انٹینسٹی سے اٹھایا گیا شاید یہاں اس انٹینسٹی سے نہ اٹھایا گیا ہو, تو وہ یہاں کے ممبران کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی. تو اس پہ یہ کے پی کا ہی تجویز تھی. شکریہ آپ کی تجویز کی. میرا خیال ہے اس پہ سب متفق ہیں. جی سر, اس پہ ٹھیک ہے جی. آگے انسٹیٹیوشنلائزنگ آفس آف وپس. یہ مشتاق صاحب تشریف رکھتے ہیں. مشتاق صاحب ہم یہ رولز اپنے امینڈ کر دیں. جی سر. اور رول میں کرنا پڑے گی امینڈمنٹ. رولز میں کرنا پڑا یا ہمیں مائک ایکٹ بنانا پڑا, تبھی ہم اس کو بنائیں گے سر. اگر ہمیں ایکٹ بنانا پڑا یا رول میں کرنا پڑا تو ہم اس کا ایک وپ کے آفس کو ایک انسٹیٹیوشنل درجہ دینا چاہتے ہیں. اور یہ بریف پیپر بھی بنا ہوا ہے, اس پہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز بھی ہے. اور یہ پروپوزل نیشنل اسمبلی اور پنجاب کی تھی. سر یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے. میں نے کہا یہ ہمارا تو ہاؤس چھوٹا سا ہی ہے, وہاں پر جو پارلیمانی لیڈر ہے وہ بھی یہی کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہمارے لیے کوئی بینیفیشل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں تو آپ اس کو پارلیمنٹری لیڈر وپ کہہ لیں, اور وہ بائنڈنگ نہیں ہوگا. پھر ہم اس کو ایسے ورڈ کریں اوبلک کر دے اس کے ساتھ جو بھی پارلیمانی لیڈر ہوگا تقریباً وہ پہ ہوگا. اب ہمارا ہے بڑا ہاؤس ہے, ہوتا ہے کہ ایک اپوزیشن کا ہوتا ہے, ایک گورنمنٹ ٹریجری کا ہوتا ہے, مگر ہم نے چونکہ پارٹیز کا سائز بھی ممبران کا بڑا ہے, تو ہم نے ہر پارٹی کو یہ ہمیشہ کی روایت ہے, یا ہم اس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس 10 نمبر سے کم ہیں ممبرز ہیں, یا کوئی اس طرح کو پرسنٹیج ہم رکھ سکتے ہیں. جی سر, تھینک یو اسپیکر صاحب. ایک تو آپ نے بڑی تاریخی یہ کانفرنس 18ویں کی, آپ کی غیر موجودگی میں بھی بات میں پہلے کر چکا ہوں, اور میں آنریبل اسپیکر صاحبان جو ہمارے سندھ کے اور کے پی کے گلگت کے, سندھ کے, پنجاب کے آئے, اور ان کے ڈیلیگیشنز جو ساتھ آئے ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. سر پارلیمنٹ کے اندر جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بھی صبح بتایا کہ جو وپ ہے اس کا بڑا ایک کی رول ہے سر, ایک طرح کا وہ گریوٹی کا اس کا رول ہوتا ہے, اور پوری پارلیمنٹ اور اس کی لیجسلیشن اس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. تو ویسٹ منسٹر سے جس طرح یہ ہم فالو کرتے ہیں, اور یہاں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ آپ نے وپ کے آفس کو بھی ایک اسٹرینتھن کرنے کی بات کی ہے, کہ اس کو انسٹیٹیوشن بنانے کی بات کی. جس طرح لائک انڈیا میں سر دیکھ لیں اگر آپ پراپر ایک آفس نظر آتا ہے, کیونکہ سب سے مشکل کام جو ہے نا سر وہ وپ کا ہے یا اسپیکر کا ہے. پارلیمنٹری لیڈر بھی ٹھیک ہے, وہ ایک سمبالک ضرور ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, لیکن سر جو وپ ہے وہ تو اپنی کرسی پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. جب ووٹنگ بھی ہے سر, اس نے پھر ٹاسک اپنے ممبر پارلیمنٹس کو سر فیس بھی کرنا ہے, ان کے ایشوز بھی آگے تک پہنچانے ہیں, اور ان کو جو کریٹیکل اسپیشلی ووٹنگ ہے اس کے اوپر بھی ان کو بتانا ہے, پارٹی لائن بھی دینی ہے, ٹو بھی کرنا. تو سر اس کو ایک یونیفارم بنا دیں. باقی اگر کوئی صوبہ امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا تو سر وہ اپنے معروضی حالات کے مطابق ہر صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہیں, پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں, کر لیں. لیکن یہااں نیشنل اسمبلی میں اور باقی اسمبلیوں میں تو میں سمجھتا ہوں سر اس کو ہونا چاہیے. آلریڈی بھی ہیں, مگر وہ ذرا اس کو ایک شکل مل جائے گی. جی سر. سر میری اس پہ سجیشن یہ ہوگی, کیپٹن صاحب نے جس طرح کہا, سر میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ایک رولز اینڈ پروسیجرز میں آ جائے, لیکن پروونسز پہ بائنڈنگ نہ ہو. جو پروونس جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہے اس چیز کو وہ کرے, جس پہ نہ ہو نہ کرے. نہیں ہم وہ کر لیں یہ اس طرح اگر اس کو رکھیں آپ.
अब उसकी सर, मैंने request वो ये की कि- शाह साहब ऐसे है कि वो फिजिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सर वो प्रोविंसेस के अपने ऊपर है कि उस पे अगर adopt फॉर करना एग्जाम्पल चाहें- मेरे पास एक पार्टी जिसके 3 मेंबर हैं, एक उसका पार्लियामानी लीडर बन गया, एक whip बन गया, तो ये आप देख ले फिर ये कैसे चलेगा? ठीक है सर, ठीक है सर, बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। इसके हमको रूल भी बना देंगे कि उसके TOR बना लेंगे कि विप के फंक्शंस क्या हैं, और हम अपनी प्रैक्टिस जो है, हमारा विप का जो है ना बहुत ही एक ऐसा इदारा है, हम 1 विंडो ऑपरेशन करते हैं। हम विप को फ़ोन करते हैं, आगे वो मैसेज देना अपनी जमात को, उनको काम है। सारे विप्स जो हैं हमारे, तो इजाज़ साहब हैं और डॉक्टर तारिक फजल हैं, ये नूर आलम साहब हैं, तो हम 1 विंडो ऑपरेशन करते हैं। हम इसके TORs या रूल्स बना लेंगे मुश्ताक साहब? अपने रूल्स में भी डाल लेंगे। आगे चलें जी। क्रिएशन ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अच्छा जी, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमें जो खबरें मिली हैं वो यही मिली हैं कि नेशनल असेंबली की पब्लिक और सेनेट की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, वो तो फ़ोन आते हैं सेक्रेटरी साहबान के कि जी हम वहाँ जा रहे हैं, तो कोई मेहरबानी करें कि उनके मेंबरान और चेयरमैन साहबान से फ़ोन करके उनसे कहें कि हमारा ख्याल है। क्यों सलीम साहब, यही होता है? जी ऐसे ही है। और वेरस प्रोविंसेस में वो उनकी अहमियत ही नहीं समझते। अरबों रुपए की रिकवरी कराई है। सर लास्ट नूर आलम वाज देयर, वी रिकवर्ड 1 ट्रिलियन रुपीस। 1 ट्रिलियन रुपीस। नूर आलम साहब, वो आप लोगों ने, आपने अपने शायद हाउस में भी ये बात हुई। अब देखें ना, 1 ट्रिलियन ये वो पैसे थे जो सरकारी अफसरान को, जो कि बैठे हुए हैं सेक्रेटरीज हैं, उनकी जिम्मेदारी थी रिकवर करना। वो नहीं कर रहे थे, इन लोगों ने पीछे पड़े हैं, उनको बार बार बुलाया है। और हमारा तो यहाँ एक और मसला था, हम कहते थे पहले केसेस हम लें जो 500 मिलियन से ऊपर के हैं, इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स थी एक डिपार्टमेंट में, दूसरे ने। एक और मसला भी है जो कि हमें करना चाहिए, एक मिनिस्ट्री ने, दूसरा पेट्रोलियम है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को से पैसे लेने हैं, उनकी आपस की सेटलमेंट नहीं हो रही और वो अदालतों में चले गए। इसके ऊपर भी पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से अब ये जो रिकवरी आप कह रहे, ज़बरदस्त है रिकवरियाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, नथिंग लाइक दैट। लेकिन ये किस कानून के तहत? जब तक हाउस अप्रूवल नहीं देता है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी किस हाउस की कमेटी डायरेक्ट रिकवरी कैसे कर सकती है? जो ऑडिट पैराज रेज होते हैं ना, गवर्नमेंट की पैरवी। आपके वहाँ ऑडिटर जनरल के दफ्तर का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है हर सूबे में, वो बताता है कि जी हमने ऑडिट किया, और ये ऑडिट भी सिर्फ 5% करते हैं। ये हमने ऑडिट किया, इतनी रिकवरी लेके देनी थी। उसकी DSC होती है, DSC में उनको मौका दिया जाता है मिनिस्ट्री को कि वो बताएं कि जी ये हम पैसे बनते हैं नहीं बनते। जब वो एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पता चले नहीं बनते, तो फिर ये ऑडिट पैरा प्रिंट हो जाता है। जो प्रिंटेड ऑडिट पैराज हैं, जो DSC से गुजर के आ गए यहाँ पे, उस पर रिकवरी करनी है। अब जो साल के जो बैकलॉग पड़ा है, हमारा तो 1985 की रिकवरियाँ भी पड़ी हुई, इन मेम्बरान की बना दी हैं जो पुराने सालों को करे, और एक बनाई है कि जो डायरेक्टिव आएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है या नहीं। क्लियर मिनिस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा है। सर मेरे कहने का मकसद ये था, मेरे शायद आप मैं समझा नहीं पाया कि ये किस कानून के तहत पब्लिक अकाउंट कमेटी ये रिकवरी करती है? सर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्वेश्चन, जी क्योंकि पैरा नंबर 12 पे हमने ये आइटम रखा भी है, एजेंडा आइटम नंबर 12। हम कहना चाह रहे हैं कि PSC और अदर कमेटी, स्टैंडिंग कमेटीज, दे आर रिकमेंडेटरी बॉडी। नॉट PSC, नॉट PSC। इवन PSC ने आवर रूल्स। नो, आप फिर रूल्स अपने चेंज करें। देखिए PSC आपके पास रिकमेंडरी नहीं है ना? नहीं दैट इज द ओनली कमेटी जहाँ के ऑडिट पैरा के बेस के ऊपर आप बुलाते हैं, और ऑडिट पैरा की रिकवरी PSC की जिम्मेदारी है, उनका फंक्शन है। और फिर रिपोर्ट हाउस से हम क्यों पास कराते हैं जब वो डायरेक्ट रिकवरी हम करा सकते हैं? अच्छा जगी साहब, जो आपका क्वेश्चन है ना कि हम किस तरीके से इसको टेक अप करते हैं। नहीं सर, मैंने कहा था हाउस का जो फंक्शन है वो खत्म हो गया ना, हाउस की जो पावर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हाउस का फंक्शन इज वेरी मच देयर। हाउस में ये रिपोर्ट ले होती है, पहले ऑडिटर जनरल आके रिपोर्ट ले करता है, हाउस उसको अडॉप्ट करके PSC को भेजती है। दैट इज द प्रोसेस। और वही फिर इवेंचुअली जो PSC डिसाइड करती है, इट इज द रिपोर्ट गोज टू द हाउस। सो हाउस के थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है।
میں اس کو فردر کلیریفائی کر دوں. ہر سال ایک رپورٹ پچھلے سال کی جس کا آڈٹ ہوا ہوتا ہے وہ ہاؤس میں پریزنٹ ہوتی ہے. جب وہ ہاؤس میں لے ہی جاتی ہے اس کے بعد وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ریفر ہو جاتی ہے. سر میں 1 منٹ لینا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. یہ بالکل 100% ایسے ہی ہو رہا ہے. ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھرو گورنر ہمیں ہاؤس میں آ جائے اور ہاؤس میں آٹومیٹکلی ہم کمیٹی کو اسپیکر صاحب ریفر کمیٹی اس پہ میٹنگز کے دوران وہ ڈائریکٹیوز ڈیسیجن لے لیتے پیراز کے اگینسٹ. ابھی پی ایس سی رپورٹ ابھی تک ہاؤس میں پریزنٹ نہیں کیا ہے, نہ ہاؤس نے اس کو اڈاپٹ کیا اس رپورٹ کو. ہاؤ کین پی ایس سی کر دیں مشتاق وہ صاحب رولز ان کو بتا دیں, نہیں ہے تو میں بتا دوں. سر مشتاق صاحب سے تھوڑا سا لے لیں, ہم اس پہ ڈسکشن کر چکے ہیں. آپ مشتاق صاحب وہی بات بسم بتا اللہ دیں شاید ہم. الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ سادہ سی بات ہے کہ جو ہمیں ہاؤس بھیجتا ہے کسی بھی کمیٹی کو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا ہے اب کہ جتنی بھی ہماری رپورٹس پی ایس سی کی بنتی ہیں تمام کی تمام ہم نے ہاؤس سے اڈاپٹ کروا لی ہیں. پہلے ہوتا رہا ہے ہم سے تھوڑی سی کوتاہی کہ ہم نے لیٹ اڈاپٹ کرائی, لیکن یہاں پر جب ہماری ادھر کمیٹی میٹنگز ہوتی ہیں تو تمام سیکٹریز خود بخود ہی وہ پیمنٹس جمع کروانا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا ہاؤس جو ہے اس کو تمام کی تمام وہی ریکمنڈیشنز جو بعد میں ہونا ہوتی ہیں ہر حال میں اڈاپٹ کرتا ہے, پھر ہم اس پہ امپلیمنٹیشن شروع کرتے ہیں. بٹ ناٹ لیسٹ جی ایک خدشہ ہے ہمیں. فار ایگزامپل ایک پی ایس سی نے ڈیسیجن دے دیا اور کنسرن ڈپارٹمنٹ ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹس وہ اس پہ امپلیمنٹیشن اور ریکوریز افیکٹ کرانا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جب اس کے بعد 2-3 مہینے 1 سال کے بعد رپورٹ ہاؤس میں لے ہو جاتی ہے اور ہاؤس نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا اور وہاں پہ ریکوریز ہو گئی ہیں تو پھر کنٹراڈکشن نہیں آئے گا. نہیں اس کو لے کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اسپیکر صاحب یہ چیئرمین پی ایس سی بتا نہیں, میں سر چیئرمین تھا, ابھی تو نہیں ہوں. بات یہ ہے دیکھیں آڈیٹر جنرل آپ کے یہاں پہ کمیٹی میں لاتے ہیں آڈٹ پیراز, ٹھیک ہے جی. وہ جو سیکٹری بیٹھا ہوتا ہے دیکھیں آپ کے ساتھ اختیارات ہوتے ہیں. ایک اگر آپ کیس کچھ آپ اس میں نوعیت بہت زیادہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو نیب یا فیڈرل ایف آئی اے کو بھی حوالے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, کہ اس پہ انکوائری کر لیں. اگر ہم اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو آنریبل ممبرز کی کنسنٹ سے سب ہم وہ کر کے تو وہ کمیٹی بھیج دیتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ریکوریز ان سے کرواتی ہیں بھی ڈال دے دیا جاتا ہے اور اس کو کوئی نہیں چیلنج کیا جا سکتا کیونکہ اس میں پہلے ہی سے 70% کام آڈیٹر جنرل آفس, یہاں پہ ہم خالی اس کو وہ کرتے ہیں, لیکن آپ کو فائل پڑھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے آپ نے فائل پڑھ ہوتے ہیں. سوری ٹو سے دیٹ اسپیکر صاحب میں ذرا کھل کے بات نہیں اب نہ کھول کے اس کو کنکلوڈ یہ کرتے ہیں. نور عالم صاحب 15 دن کا نوٹس دیتے تھے سیکٹری صاحبان کو کہ آپ کی پیشی ہے. سیکٹری صاحبان فون کرواتے تھے اپنے جو بھی جاننے والے ہیں کہ جی ان سے کہیے گا ہاتھ ہلکا رکھیں ہم ریکوریاں کر رہے ہیں. وہ سارے کام چھوڑ کے ریکوریوں میں لگ جاتے تھے. اتنی دہشت ہے پبلک اکاؤنٹس کا. اور آپ جو سوالات ریز کر رہے ہیں آل دا مور ریزن یہ ایسوسیشن بننا چاہیے بیکاز یہ ریکوری کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسوسیشن اگر سب ایگری کرتے ہیں ہمیں بنانی چاہیے. ریزولوشن ہے, دیر از اے ریزولوشن. سر میں جی ایسے ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم کانسٹیٹیوشن انویسیج کیا اس کی جو بیک بون تھی وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی. Now we have two constitutional positions. One is of Auditor General of Pakistan that has a straight nexus with the assemblies, whether it be the National Assembly or the provincial assemblies. اب یہ جو جگہ ہم نے چھوڑی ہے نا اس نے برا صرف ایک ہی چیز کا کیا ہے, وکٹم اگر کوئی چیز بنی ہے تو وہ اکاؤنٹیبلٹی بنی ہے اٹ سیلف, اور پھر نیب جیسے ادارے اور یہ لغویات اور فضولیات تب سے پیدا ہو گئی. اس کا ایک پرابلم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ سسٹم بڑا سمپل ہے, اس پہ لیکچر کرنے کی ضرورت تو بالکل نہیں ہے کہ دیر آر فیو کوالیفائڈ پیراز جن کی سیٹلمنٹ ضروری ہے اور اگر وہ سیٹل ہو جائیں تو آپ اس کو ریکوری تصور کرتے ہیں. یہ مسئلہ اس وقت الجھا ہوا کیوں ہے کہ ہم نے یہ اسپیس اسمبلیز نے خود چھوڑ دی ہے اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کے جو پی ایس سیز کے جو رولز ہیں دوز نیڈس ٹو بی ریوزٹڈ اینڈ دوز سیریسلی نیڈس ٹو بی ریوزٹڈ. آپ جو اس کی یہ بھی بناتے ہیں یہ ایک
एसोसिएशन बनाते हैं, यही रिकमेंड करेंगे। यही रिकमेंड उसमें करने सर। और आप लोग एक्सपीरियंस के लिए हमारे फॉर्मर जो चेयरमैन रह चुके हैं उनसे और हमारे सेक्रेटेरिएट से भी इस पे गाइडेंस दें। तो So if everybody is agreed on it, may I read the resolution here? Approve in principle the establishment of Pakistan Association of Public Accounts Committee to foster collaboration, share best practices and address public financial accountability challenges collectively. Recommended the insertion of rule in the rules of procedures and code of conduct business of the National Assembly, provincial assemblies and legislative assemblies of AJK and Gilgit-Baltistan to formalize and the establishment of PAPAC. Encourage PAC to convene the first meeting of PAPAC within 6 months of this ये ठीक है? सबको Agreed? मंजूर है? मंजूर है जी? अच्छा, अब हम थर्ड के बाद फिफ्थ ले लें, बाइंडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएससी परफॉर्मेंस ऑडिट सिस्टम। KP. ये केपी की रिक्वेस्ट है कि परफॉर्मेंस ऑडिट सिस्टम ऑफ, इसको एक्सप्लेन कर दें, सेक्रेटरी साहब कर दें। आप करें, मैं इस पे कमेंट कर लेता हूँ। आप सही से इस पे उस पे चले जाएं। अच्छा, आए तो सही कर। अच्छा सर, ये परफॉर्मेंस ऑडिट सिस्टम से हमारा मुराद था कि इस वक्त जो सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है वो रेगुलेटरी ऑडिट सिस्टम चल रहा है। ये रेगुलेटरी ऑडिट सिस्टम में हम पीएससी में ये देखते हैं और जो हमारा ऑडिट जो है वो ये देखता है कि पैसे थे आपके पास कि आपने ये खर्च किए थे और इसी मकसद के लिए आपके पास पैसे थे, या जिसने पैसे अप्रूव किए या सैंक्शन किए उसके पास इख्तियार था, या जो आपने लोएस्ट आइटम लिया हुआ है। यही चीज़ें हम हमारी ऑडिट भी ये पैरा उठाती है और हम उसमें पीएससी में भी यही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब मेरा जो ओपिनियन था, हमने जो ये आइटम इधर ले आए कि हम परफॉर्मेंस ऑडिट पे चले जाएं, जिस तरह दीगर ममालिक में होता है कि जो आइटम आपने मिसाल के तौर पे 20 रुपए का ये आइटम ले लिया है, तो आया इसकी जो असल कीमत है वो वैल्यू फॉर मनी उसकी अचीव हो गई है, या जो आपने 20 रुपए इस पे लगाए हैं तो इससे कौम को या सूबे को क्या फ़ायदा पहुंचा है। यानी जितना पैसा आपने लगाया है उसकी वैल्यू फॉर मनी अचीव हो जाए और उसके कितना परसेंट जो है ना उस पर इम्प्रूवमेंट आई है आवाम के ज़िंदगी में। ये चीज़ें हम परफॉर्मेंस ऑडिट में देखें तो इधर अब बाज़ औक़ात हमें परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट भी आ जाती है, तो उसमें जब हम खोलते हैं तो वही उसके अंदर जो है ना शुरू में वही उसका कवरिंग पेज होता है परफॉर्मेंस ऑडिट, और अंदर जब खोलते हैं तो वही रेगुलेटरी ऑडिट उसमें भी होती है। इसमें मैं आपको एक अपना हमने 2013 में पार्लियामेंट में खर्चा होने से पहले प्री ऑडिट रखा हुआ था। आपने खर्चा जो करना है करने से पहले एक कमेटी बन गई थी, वो ऑडिट हर चीज़ का करती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि एक पैसा भी गलत खर्च ना हो, पेपरा रूल्स वायलेट ना हो, एक एक चीज़ जो है हमने तो अपना सिस्टम बनाया। आप जो बात कर रहे हैं वो डुप्लीकेशन हो जाएगी, आप अपना बना लें प्री ऑडिट सिस्टम, अदरवाइज ऑडिटर जनरल का फिर काम तो आप कर रहे हैं। सर वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो है ना वो लॉ में है कि हर डिपार्टमेंट में इंटरनल ऑडिट सिस्टम होगा, और ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाला जो है ये एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम है, तो वो तो हो सकता है। सर ये जो हमारे जो ऑडिट आजकल जो पैरा उठाते हैं ये सिस्टम एजी ऑफिस में जो बिल जमा होते हैं प्री ऑडिट काउंटर पे उधर ये। अब आप कंटिन्यू करें, मैंने वो स्पीकर सऊदी अरेबिया से मिलना है। अब स्वाति साहब आप बात करेंगे, फिर अहमद भी करना चाहते हैं। जी सेक्रेटरी साहब, इसको जरा आप समझाएंगे कि इसका एम्बिट क्या होगा, जो एम्बिट जिसकी आप परफॉर्मेंस ऑडिट की बात कर रहे हैं, इसका एम्बिट जरा समझाएं। मैं भी इसमें जी इजाफा करना चाहूँगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा जो हमने पीएससी में देखा है पंजाब में के प्री ऑडिट के बावजूद प्लेथोरा ऑफ ऑडिट्स प्रिंट होते हैं, एंड आई कैन से नाउ विद मुश्ताक साहब आपसे तो I can say now with a lot of confidence that 90% of the paras that end up in the
Auditor General's report are innocuous. وہ بالکل, اور اس میں کوئی میل پریکٹس بھی نہیں ہوتی, کوئی اس میں so audit paras are printed for the sake of printing audit paras. And we want, جو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو پرفارمنس آڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی پارلیمنٹ نے ہیلتھ کے ری ویمپنگ کے لیے فرض کیجئے 100 ارب روپے ایلوکیٹ کیا. سو پرفارمنس آڈٹ یہ ہوگا کہ اس 100 ارب روپے سے ہیلتھ سسٹم میں کمنزریٹ ریزلٹس آئے ہیں, کیا اگر پیشنٹس کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے, ہیلتھ انڈیکیٹرز میں کتنا اضافہ ہوا ہے. سو اٹس بیسکلی اے ویلیو فار منی آڈٹ کے جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں اس کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے. اینڈ موسٹلی پی ایس سیز ان دا کامن ویلتھ ہیو گریجویٹڈ to performance audits. What we are doing is a very archaic process of settling financial paras. So اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان audit paras کی کتابوں کا جو سائز ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے, اور یہ جو 1-1 ملین کے 2-2 ملین کے کئی دفعہ انٹینشنلی آڈٹ کریٹ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بنا دیں یہ چھوڑ دیں, اور اگر if you dig down deeper then the whole process I would say is polluted from all sides. So AGPR has a very critical role in this whole process, and I think maybe the assemblies and the parliament need to have a more direct some sort of interaction. اچھا احمد, اس میں اگر سلیم صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ایز فار ایز آپ کا کوشچن تھا پرفارمنس آڈٹ کا, پرفارمنس آڈٹ کین بی ڈن بائی دا پی اے سی. آپ کسی بھی پیرا پہ کسی بھی ایشو پہ آپ خود کال کر سکتے ہیں کہ مجھے اس پہ آپ پرفارمنس آڈٹ کر کے دیں. تو پرفارمنس آڈٹ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہاؤس ہی کرے گا. جس کمیٹی میں بھی کوئی ایشو ہے, ناٹ ایون پی اے سی, ہم نے فائنینس کمیٹی میں سینٹ کی پرفارمنس آڈٹ کروائے ہیں ڈپارٹمنٹس کے, اور ضروری نہیں ہے کہ یہ اے جی پی آر ہی کرے گا. یہ بھی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ رولز میں آپ یہ بھی ڈالیں کہ پی اے سی کین اپوائنٹ اینی بڈی ٹو کنڈکٹ دا پرفارمنس آڈٹ. کیونکہ ایک اور اسپیکر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اے جی پی آر میں بھی سیریس کیپیسٹی ایشوز ہیں, جو یہ ذکر کر رہے ہیں نا پولوٹیڈ, اے جی پی آر میں بھی سیریس کیپیسٹی ایشوز ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے پرفارمنس آڈٹ کرنے کی. تو دا پی اے سی شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو اپوائنٹ اینی باڈی ٹو کنڈکٹ دا پرفارمنس آڈٹ. So that will that you need, that he is talking about کہ جی پرفارمنس آڈٹ کی کا رزلٹ کیا ہے. اگر یہی رزلٹ ہے کہ جی اس نے کتابیں چھاپ کے آپ کو دے دینی ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. تو دس از واٹ وی شوڈ. ملک صاحب. چیئر سر, یہ کیونکہ یہ پبلک فائنینسنگ ہے اور اس میں ایک ریگولیٹری رجیم ہے, اور وہ اٹ سیلف ایک آڈٹ ڈیمانڈ کرتی ہے, اس کے ایک سرٹن سیٹس آف لاز اینڈ ریگولیشنس کے تابع وہ پیسے دیے جاتے ہیں. تو وہ یہ جو آڈیٹر جنرل کا سسٹم انویسیجڈ ہے وہ تو بیسکلی ایک ریگولیٹری رجیم کے اوپر ہے, تو وہ تو رہنا ہے. اب اگر اس کو ہم نے پرفارمنس آڈٹ پہ لے کے جانا ہے تو پھر جیسے ابھی سلیم بھائی نے کہا کہ ہم کسی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی طرف جا سکتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ سرکاری آڈیٹر ہی ہو, وہ کسی بڑی فرم سے بات کر سکتی ہے, کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہہ دے, کسی فرگوسن کو کہہ دے, کسی تیسرے چوتھے کو کہہ دے, ان میں سے لے لے. لیکن یہ ریگولیٹری رجیم تو رہنی ہے, یہ تو ہر صورت رہنی ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ پرفارمنس آڈٹ کی طرف جانا بھی ایک لازمی امر ہے. اگر ہم نہیں جاتے ہیں تو یہ جگہ پھر کوئی اور آکوپائی کرے گا. یہ جیسے پہلے اس کے اندر بدعتیں آئی ہیں, اور ان میں سب سے بڑی بدعت نیب جیسا ایک کبھی قانون ہے جس نے ہمیں یہ رستہ نہیں نکال سکتے. تو آپ کو اس پہ پہلے ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہیے. میری رائے میں ایسا ہے کہ آپ اس میں اوپینین الیسٹ کریں کیسے پرفارمنس آڈٹ کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ منطقی جگہ تو وہی ہے جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے. اس رجیم کے ساتھ رہتے ہوئے, ریگولیٹری رجیم کے ساتھ. ملک صاحب, یہ جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں نیشنل اسمبلی کے, اس میں تو ہر کمیٹی کے پاس یہ پاورز ہیں کہ یہ کروا سکتے ہیں. ہاں, تو پھر آپ وہ میری اسپیکر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی, سیکرٹری صاحب نے جو یہ ایجنڈا دیا ہے, اگر یہ خود ایک میکینزم بنا لیں اور اس کو سیکرٹریز کانفرنس میں رکھ دیں جو ایوری 90 days ہونی ہے,
اس پہ وہ ڈسکس کر کے مشتاق صاحب بھی اس میں بیٹھ جائیں, ایکسپرٹ اوپینین جس طرح آپ نے سجیسٹ کیا مشتاق صاحب کا بھی آ جائے گا. فردر اسپیکر صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں اس پہ. شکریہ جی. میں یہ کہتا ہوں کہ آڈیٹر جنرل کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. میں نے جو پچھلے 4 سال میں ممبر رہا ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کے پی میں, تو وہاں یہ بات آبزرویشن میں آئی ہے کہ انتہائی لو لیول کے جو ہے نا پیراز جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آ کے پریزنٹ ہو جاتے ہیں, اور جن میں چیز بھی کوئی نہیں ہوتی اور میئر ویسٹیج آف ٹائم ہوتے ہیں, اس پہ بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اس پہ آتے ہیں. اس کو بھی دیکھیں, ہم اداروں کو کیوں اتنی ہم نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں, ہم نے وہ جدھر ان کا دل چاہتا ہے چلے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کو ریویو کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ نیشنل اسمبلی کی سطح پہ ہی ہونا ہے یہ ریویو, کہ اس کو ریویو کیا جائے ان کی اپنی جو ہے وہ کارکردگی کیا ہے. میں نے بہت سارے ان سے آڈٹ کرائے کہ جی یہ فلاں کا آڈٹ کر کے دیں, جس کا پہلے سے ہم نے خود بھی کوئی کام کیا ہوا تھا, تو اس کا جواب ایسا ہی ہے. اور ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا کہ کیپیسٹی نہیں ہے. یہ جو ہمارے انرجی کے اور یہ دوسرے معاملات ہیں, ان کے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو ان کا آڈٹ کر سکیں. تو ہمیں الٹیمیٹلی جو ہے نا کوئی اس کا حل سوچنا پڑے گا. جی اسپیکر صاحب, یہ آپ نے جو بات کہی ہے, سلیم صاحب نے جس طرح ملک صاحب نے آگے اس کو بڑھایا کہ واقعی کیپیسٹی کا ایشو ہے, میں یہ کہوں گا کہ آپ نے یہ ایجنڈا دیا ہے, میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اگر اس کو سیکرٹریز کانفرنس میں لے جائیں, مشتاق صاحب بھی اس میں بیٹھ جائیں, ایکسپرٹ اوپینین لے کے اس پہ ایک میکینزم بنا لیں کہ یہ پرفارمنس آڈٹ کس طرح کی سر میں سر دیکھیں گے, دس از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لائک لیفٹ لائک دس. اب ہماری نظر میں ایسے تھا کہ ہمارا سسٹم بڑا انیکرنسٹک ہے, اور جو 100 سال پہلے ایک نظام وضع ہوا تھا آج پبلک ڈلیوری نہیں دے سکتا, تو اس پہ پی پی ایل موڈ پہ چلے جانا چاہیے. ہمیں پبلک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بنا لینی چاہیے, کمپنیز افیکٹولی کام کر لیتی ہیں. اب فنڈنگ تو گورنمنٹ کی تھی, تو جب وہ کمپنیز بنی تو کمپنیز نے انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز لیے. اب آئین اس جگہ پہ انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز کو وہ گنجائش ہی نہیں دیتا تھا. تو جب وہ رجیم چینج کی بات آئی تو جتنی پاور کمپنیز تھیں, جتنی پبلک سیکٹر کمپنیز تھیں, ان سب کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا گیا, اینڈ دیٹ واز اے کمپلیٹ میس. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کے ایجنڈاز میں ابھی تک جن 2 چیزوں پر ہم زیادہ آپ سے سٹریس کریں گے, 2 یہ ایجنڈا آئٹم کے پی نے بھیجا ہے, لیکن ہم نے جب پڑھ لیا تو دین وی جسٹ کو آپٹیڈ اٹ. ہمارا صرف یہ تقاضا ہے کہ آپ اس میں اس کی جو کمیٹی بنا رہے ہیں, یا آپ کے پبلک اکاؤنٹس والے میٹر میں آپ کو زیادہ سیریسنس کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, اس کا لیول آپ کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے, ٹائم فریم تعین کرنے کی ضرورت ہے, اس میں آپ کو ایکسپرٹ اوپینین لینے کی ضرورت ہے. اور یہ معاملہ صرف آپ کے پروسیجرز میں ڈیل نہیں ہوگا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کریشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, آپ کو وہاں تک جانا پڑے گا. جی اٹ وونٹ اسٹینڈ ہیئر. جی مشتاق صاحب, اس پہ آپ کچھ کہیں گے؟ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی ضرورت ہوگی. جی اس میں چونکہ ہمارا آئین کے اندر مائک کھول, چونکہ ہمارے آئین کے اندر آرٹیکل 168 سے لے کر 171 تک آڈٹ کی پروویژنز ہیں, اور اس کے تحت سر ہمارے بہت سے لاز بھی انیکٹ ہوئے ہوئے ہیں, پھر رولز بنے ہوئے ہیں. جب ہم اس سسٹم کی طرف ہمیں جانا ہوگا تو پھر ان تمام آئینس کے آرٹیکلز اور لاز میں ہمیں امینڈمنٹ بھی کرنا پڑے گی, ادروائز اسٹریٹ اوے ہم نہیں جا سکیں. یہ پلیز. جی اسپیکر صاحب, جانا پڑے گا تو جائیں گے نا, اس میں کیا ایشو ہے؟ تو نیشنل چیزوں کو بہتر نہیں کرنا ہے. ٹھیک. دوز امینڈمنٹس یہ کانسٹیٹیوشن کی وہ پروویژنز ہیں جس پہ آپ کو پارٹی افیلیشن کی بنیاد پر بھی مخاصمت نہیں ہوگی, سب کی اتفاقی رائے ہوگی, اینڈ دے کوڈ بی ڈن اسٹریٹ اوے. یہ پی ایس سی کی جب ایسوسیشن بنے گی, اس کی ریکمنڈیشنز آئیں گی, پھر ہم آگے بڑھنا گے. ٹھیک ہے اسپیکر صاحب, shall we move towards the next item, binding implementation of شاہ صاحب ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری. جی کیپٹن صاحب. گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ کلیئر نہیں ہوا ہے. کون سا جی؟ بائنڈنگ آف دی جو ریکوری ہوتی ہے پی ایس سی کے تھرو. میری اپنا نور عالم خان صاحب سے اور مشتاق صاحب سے ایک 2 ٹوک الفاظ میں ایک جواب چاہیے. کیا پی ایس سی پارلیمنٹ اسمبلی سے
एडॉप्शन के बगैर रिकवरी कर सकती है या नहीं कर सकती है? मुश्ताक साहब जवाब आपने देना। अडॉप्ट तो करना पड़ेगा ना। नहीं, वो ये नहीं कर रहे ये हैं। असल में जी बेसिकली चूँकि ये सर इशू रेज हुआ, हमारे कुछ दोस्त अदालतों में गए जो ये बार बार बलूचिस्तान असम्बली हमारे मुंह से निकलवाना चाह रही है। वो अदालत में केस गया और जब वहाँ गया तो हमारी इत्फाक की बात है कि नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी साहब ही जज थे जब ये इशू गया बलूचिस्तान केपी के हाई कोर्ट के अंदर, कि भाई जब तक आपका हाउस इसको अडॉप्ट नहीं करेगा तो आप ये रिकवरीज नहीं कर सकते हैं। वहाँ अच्छा खासा ये केस चला, तो खैर चूँकि हमारे ही सेक्रेटरी साहब से तो उन्होंने फिर हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। ये फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, लेकिन उसमें जो आप पॉइंट रेज कर रहे हैं अभी तक तो यही फैसला है कि आपकी पीएसी जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो एक रिकमेंडेटरी बॉडी है और उनकी जो रिपोर्ट तैयार होगी उसको फिर हम हाउस में पेश करते हैं। जब हाउस में पेश करने के बाद अडॉप्ट हो जाती है तो फिर हम लीगली उसकी रिकवरी शुरू करते हैं। लेकिन अब वहाँ पर फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन का ये सिलसिला सारा हमारे इधर पीएसी के अंदर भी हमने सब कमेटीज़ बना रखी हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो अप कर रही हैं। ये जो दूसरी बात हमारी चल रही है कि यहाँ पर जिस तरह इसी कमरे में हमारी पीएसी की मीटिंग्स होती हैं, जब यहाँ पैरा डिस्कस किया जाता है तो हमारी चूँकि पीएसी की कमेटी का काम है उस जो ऑडिटर जनरल का पैरा है उस पर इन्वेस्टिगेट करे। अब उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई सेक्रेटरीज आके रिकवरी करवा रहे हैं तो उस पर भी हमें इतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं ना रिकवरी। हमारी पीएसी ने अभी उनको सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है, या कहा है कि आप अपने महकमे में दोबारा जाकर अपनी मीटिंग्स करें और ये देखें कि भाई ये आपने जो किया हुआ है गलत है या सही है। इस दौरान जब वो देखते हैं तो फिर कहते हैं ठीक है जी हम इसको रिकवरी कर देते हैं, लिहाजा आप इसी स्टेज पे हमारा पैरा सेटल कर दें। ये सिलसिला हमारा आजकल चल रहा है। जी स्पीकर साहब क्लियर हो गई बात? यानी कि इस वक्त तक जो तरीक़ाकार मौजूद है वो ये है कि असेंबली की अप्रूवल और एडॉप्शन होनी चाहिए, तब जाके पब्लिक अकाउंट कमेटी रिकवरी कर सकती है, अदरवाइज नहीं। इन दौरान मीन टाइम में अगर कोई खुद रिकवरी करा देते हैं तो उसमें कोई इतराज नहीं है किसी को। देखिए यहाँ पे जी नूर आलम खान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए रिकवरीज तो हमने की हैं, ठीक है ना जी, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने की है थ्रू ऑडिटर जनरल ऑफिस। और ये और इसको कानून जो आपका, अगर आप आर्टिकल 66 भी पढ़ेंगे और 69 भी पढ़ेंगे, उसमें बाकायदा आपको ये कि आप नूर आलम साहब वो स्पीकर साहब ने बात समझ गए हैं, मुश्ताक साहब ने क्लियर आंसर चलो ठीक है। मैं वरना मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रहा था कि मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएसी रिकमेंडेशन डायरेक्टिव्स, ठीक है ये हो गया सर। अच्छा हो गया। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर मूव बाय केपी। स्पीकर साहब जनाब अली, तो ये वाज़े है ना जी, अभी सारा जो है ना किस्सा और लांझा जो है ना वैसी से तो पड़ा हुआ है। आप ये हमारे एंड पे जो है ना जी, ये मैं ये समझता हूँ ये पॉलिटिकल एंड पे ये बड़ा फेलियर है कि आपने काम की और आप उसे आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सिस्टम तो निज़ाम कैसे चेंज होगा? वही अंग्रेज़ के बैठाए हुए सेक्रेटरीज आज भी बैठे हुए उसी पावर्स के साथ बैठे हुए हैं, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये चीज़ों को चेंज होगा? जी सर। स्पीकर साहब सर नहीं जी, हम सवाती साहब के स्पीकर केपी के इन आलो अरफा ख्यालात के बड़े शदीद हामी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। तो सर अगर आप हामी हैं तो उसका डिसीजन, जो प्रपोज डिसीजन है उसको देखा जाए। सर देखें जी। The Speakers Conference recognized the constitutional change brought by 18th Amendment which altered the structure of executive authority at the provincial level. In light of this, the forum deliberates on the need to clarify the role of principal accounting officer in the post-amendment scenario. It is agreed that provincial minister rather than administrative secretaries should present their respective departments in meeting with the Public Accounts Committee and report on the implementation status of PAC recommendation. This shift will make ministers directly accountable for the efficiency and responsive
of their departments to parliamentary recommendations, ensuring the effectiveness of the accountability. ये मेरा ख्याल है ये आखिरी वाली 3 लाइनें काट दें। नहीं सर, मैं जरा मिनिस्टर तो पहले शाह जेल में जाता है। साहब, ऑनरेबल स्पीकर ये साहब, पढ़ने के बाद ऑनरेबल प्लीज खाली एक चीज पे, जस्ट फॉर बेसिकली बिकॉज इसमें मिनिस्टर की कोई गुनाह होता नहीं है, मैं ये बात उसको करना आप चाह रहा उसको हूँ। क्यों मैंने वो ये डालना डिसीजन चाहते पढ़ा हैं? तो आखिरी स्पीकर साहब, इसमें मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे, किस तरह होंगे? सर थोड़ा गुजारिश इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? कोई 129 जो कहता है ना जी, वो भी पढ़ लें, मगर मैं सिंपली बात वैसे सादे अल्फाज में बात करता हूँ ना। आज तक कोई सेक्रेटरी पकड़ा गया है, वो सारे हमेशा मिनिस्टर ही पकड़े जाते रहे हैं ना। इससे पहले कौन सा मिनिस्टर उसके पास कोई ऐसा वो था? सर देखिए, ये वो बातें अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर वो एक अलग बात हो गई। स्पीकर साहब, मिनिस्टर कैसे प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होगा? क्यों नहीं होगा की जी? जो 4 लाइनें हैं, ये तो आई डोंट थिंक इट्स विल चेंज इट। सर आर्टिकल 128 जो है पहले से चेंज हो गया। नो सर आर्टिकल 128 अभी आप पढ़ें और पहले वाला पढ़ें तो उसमें चेंजेस हैं। उसमें चेंजेस ये हैं कि अभी आपका प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर आपका मिनिस्टर आ गया है, तो जब मिनिस्टर आपका वो हो जाएगा तो उसके बाद फिर तो वो रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है जवाब देने के लिए। इस पे मैं स्पीकर पंजाब असेंबली का ओपिनियन लेना जरूर चाहूंगा, और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली भी इस पे अगर कुछ कहें तो। अच्छा सर देखिए, मैं ये एक्सप्लेनेशन हम दे दें। मैं सर मुझे इजाज़त दें जी देखिए, जहाँ ये बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली वर्डेड पोजीशंस हैं जो आपके ज़िम्मे कुछ हकूक़ और कुछ फ़राइज़ डालते हैं। जिस तरह हम मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट पे और द कैबिनेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द हाउस पर क्लियर है, इसी तरह हम अकाउंट्स पे भी क्लियर है। अब अकाउंटिंग इज yes, the political decision should be the political people's decision. उसको civil servants को overrule नहीं करना चाहिए through their summary mannerism. Authority should vest with the political decisions, and then execution and disbursement of those funds should remain with those who are trained for that accounting. And respectively, when it comes to the Public Accounts Committee, the person who has been responsible for disbursement, उनको आके उस disbursement को justify करना चाहिए कि ये कैसे कैसे अखराजात हुए। तो ये बड़ी वाज़ेह पोजीशन है आइन में। अब इसकी रीडिंग जैसे भी एक फीलिंग आ रही है कि केपी की इस तजवीज़ के साथ कि शायद वज़रा की ये ज़िम्मेदारी भी है कि जो अखराजात उन्होंने किए हैं उनके हिसाबात भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आके दें, तो ग़ालिबन ये आइन की मंशा नहीं है हमारी नज़र में, तो आप इस पे गौर कर सकते हैं। जी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? बोलो, हम क्लियर हैं एज इट इज सेक्रेटरी। सर हम क्लियर है इस बारे में, एज इट इज कोई इशू नहीं इसके ऊपर। सर मैं आपको इशू नहीं है कि सेक्रेटरीज होने चाहिए या मिनिस्टर्स होने चाहिए? सेक्रेटरीज हैं, इस तरह जिस तरह मलिक साहब ने डिटेल बताया कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर तो सेक्रेटरी होता है। How can a minister be responsible for disbursement of funds? असल में सर होना तो चाहिए कि अगर मिनिस्टर इफ ही इज हेड ऑफ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, फिर तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर भी उसी को होना चाहिए। देखिए मिनिस्टर्स तो पॉलिसी डिलीवर करते हैं, पॉलिसी देते हैं। तो कैसे आप क्या कर कैसे सकते हैं सेक्रेटरी के अलावा सर? कोई तरीक़ाकार है आपके पास सर इसको, सर हाउ टू डू दैट? सर जी ये सेक्रेटरी जो होता है तो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर तब होता है जो इस इख्तियारात उसको डेलीगेशन ऑफ पावर रूल्स के तहत मिल रहे हैं। ठीक है सर, 18 अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल नंबर 129 जो था वो था कि गवर्नर खुद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल करता था या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर के ज़रिए। तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर के ज़रिए जब वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल करता था तो उसके लिए उन्होंने फाइनेंस साइड पे डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स बना दिए, वो पावर्स अपने जो है ना सेक्रेटरीज को डेलीगेट कर दिए।
جو آج تک چل رہے ہیں. آئین میں تبدیلی بھی ہو گئی لیکن پھر بھی جو ہے وہ ڈیلیگیشن آف پاور سارے صوبوں میں وہی چل رہے ہیں. 129 آرٹیکل چینج ہو گیا, وہ ایگزیکٹو اتھارٹی چلی گئی چیف منسٹر کو, یا وہ خود ایکسرسائز کرے گا یا کیبنٹ منسٹر کے ذریعے ایکسرسائز کرے گا ابھی. اور ابھی جب سیکٹریز جو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی تو منسٹرز کے پاس آ گئی, تو وہ رولز جو ہے وہ ابھی تک وہ گورنر کے رول چل رہے ہیں جو سیکٹریز کو انہوں نے دیے ہوئے آپ رولز چینج کر لیں نا. اب یہ وہ پوزیشن ہے جس پر ہم صبح سے بحث کر رہے ہیں, جس پر ہم نے آرٹیکل 130(6) کی بحث کھولی, جس میں ہم نے کہا منسٹیریل رسپانسبلٹی صوبوں میں محکمہ جات کی جگہ پہ وزارتیں ہونی چاہیے. اب وفاق نے جب یہ کوئی شجر ممنوع نہیں ہے اس پہ بات کرنا, یہ بڑی ریلیونٹ بحث ہے. یعنی ہم یہ اختیار تو مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں وزارت دیں جس میں وہ ایڈمنسٹریٹو جو سیکٹری ہیں وہ جواب دہ ہوں وزیر صاحب کو, اور اسی نسبت سے وزیر صاحب جواب دہ ہوں مکھننا کو. تو یہاں پر وفاق نے جو طریقہ کار تفویض کیا وہ زیادہ مؤثر ہے کہ منسٹری ہے, ان کی کارکردگی کی اے سی آر تو ضرور وزیر صاحب تک آتی ہے, لیکن اکاؤنٹنگ کے میٹرز جو ہیں وہ ڈیلیگیٹڈ پاور ہے. بے شک اگر گورنر صاحب نے اس کو ڈیلیگیٹ کیا تو یہاں پر آپ کی کابینہ نے بھی اسی انداز میں ڈیلیگیٹ کیا اور ان کو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز کے وہ جو سیکٹریز کے پاس رہنے دیا کہ چیک کی سگنیٹری کی اتھارٹی وزیر نہیں ہے, وہی ہیں. اس کے پیچھے جو وزڈم ہوگی میرے اندازے میں وہ یہ ہوگی کہ اس میں کیونکہ بہت سے فائنینشیل رولز کی امپلیکیشن ہوتی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ فائنینشیل رولز کے ساتھ آپ نے کرنے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل فائنانس منسٹری ہے لیٹ سے, تو آپ کی وزارت بے شمار وزارتیں فائنانس منسٹری کی طرف جاتی ہیں, تو ان کے آپس کے اندر بھی ریلیشنز ہوتے ہیں, رولز ہوتے ہیں, تو اس کے تابع یہ نظام چلتا ہے. اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو 129 اس طرح سے تجویز کر رہے ہیں تو آپ کل مختار بن جائیں گے کہ جس میں بیٹھ کے آپ ایک اپنے محکمے کی خود اپنی سوابجید کے طور پہ سگنیٹری بن جائیں گے. اور جتنی بھی ایون ایز اسمبلی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اگر ہم نے کوئی منی بل لینا ہو تو ہمیں گورنمنٹ کے پاس تھرو ریسپیکٹیو ایف ڈیز جانا پڑتا ہے, تو یہاں پہ تو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہر صورت میں رہے گا ہی رہے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس اسکیم کے اندر یہ آپ کی جو وفاقی حکومت کا اختیار کیا گیا طریقہ کار ہے, صوبوں کو بھی اس کے نزدیک ترین جانا چاہیے. اچھا ملک صاحب, میں آرٹیکل 98 کو پڑھ دیتا ہوں. آن دا ریکمنڈیشن آف فیڈرل گورنمنٹ مجلس شورا پارلیمنٹ may by the law confer function upon officer or authorities subordinate to the federal government. یہی ہم کہہ رہے ہیں. یہ آرٹیکل میں اس کلیئر لکھا ہوا This is 91 98. ہاں, تو یہی تجویز ہم کہہ رہے ہیں کہ صوبوں میں بھی شاید یہ 98 کا ہی شکل رہے تو بہتر رہے گی. کیونکہ اب صبح سے یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں پیرالل لانا ہے اپنے ایون رولز اینڈ پروسیجرز کو بھی, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ فنکشنلٹی ریکوائرڈ. شاہ صاحب اس میں ایک مزید تھوڑا سا ایڈیشن کے لیے, جس طرح صبح پہلے سیشن میں ملک صاحب نے کہا تھا, کسی نے کوئی کوشچن ریز کیا تھا کہ پنجاب میں ایم پی اے صاحبان یا منسٹر صاحبان سیکرٹری صاحب کے دروازے پہ کھڑے رہے ہیں اور ان کو 2-3 گھنٹے تک ملاقات کا ٹائم نہیں ملا گیا. اچھا, پھر ان ریٹرن ہوا کیا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے صرف ان سیکرٹریز کو چینج کر دیا, اس کے علاوہ منسٹر کے پاس یا اس کے تقریباً محکمے کے پاس کوئی ایسی اختیار نہیں تھا. اگر آپ اس کو پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر آپ منسٹر کو نہیں بھی بناتے ہیں تو کم از کم کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں سیکرٹری صاحب کا اے سی آر وہ منسٹر کے صاحب لکھیں جو بھی رپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر, یا پھر کوئی اور ایسا میکانزم بنایا جس میں ہی شوڈ بی آنسریبل ٹو دی منسٹر. ابھی اس وقت تو اس میں کیپٹن صاحب یہ کر لیتے ہیں کہ اس میں پروونسز جو ہیں وہ فیڈرل جو لاز ہیں اس میں آفٹر 18 امینڈمنٹ اس کے پیرالل اپنے لاز بنا لیں, اور اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, اس کو فائنلائز اس طرح لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ہمیں یونیفارمٹی چاہیے کہ ہم صبح سے اس چیز پہ ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پروونشل لاز اور فیڈرل لاز میں بہت اونچ نیچ ہے. ایون سینٹ, نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے رولز اینڈ پروسیجرز بھی چینج ہیں, بہت سی چیزوں میں ہمیں اڈاپٹیشن کرنی ہے. تو اگر لاز ہم سملرٹی پہ لے آئیں
तो उसमें ज़्यादा बेहतर होगा, जी उसमें हाँ। आप लिख सकते हैं ये बात। जी हाँ, डिस्कशन हो सकती है इसके ऊपर, ये जो ना इसको ओपन होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें देखिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और एक ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर, इनके दरमियान कोई फर्क जो ना वो नजर आना चाहिए, वो यानी कि एक अवामी नुमाइंदे के तौर पर मेरे जब कुछ आप अपने लॉज अमेंड करेंगे तो उसमें आप ये लिख सकते हैं प्रोविंशियल में कि आप ACR का लिख सकते हैं खुद। सर आर्टिकल 98 महकमे की जगह वजारत बन जाएगी तो उसका मंतकी इंजाम तो यही होगा ना। यही होगा सर। सर आर्टिकल 98 जो आपने पढ़ा सर, सिमिलर 98 जी हाँ, सिमिलर आर्टिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आर्टिकल 138 सिमिलर वर्डिंग है, ऑलरेडी है सिमिलर वर्डिंग वेटिंग है। जी हाँ। Now agenda number, its number is changed, the accountability and transparency of legislatures by making their proceedings accessible to public through live streaming. जी इस सिलसिले में हमने तो जी अपने रूल्स में ये अमेंडमेंट कर ली है कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो होगी और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी और वो हम कर भी रहे हैं। तो द फोरम में डिस्कस टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस इन सिस्टर सिंध असेंबली में 2010 से हो रहा है। जी जी। अच्छा, मुझे अगर आप 2010 से ही हो रहा है। हाँ सर, if I may have the permission sir. Sir, ये I have been a very ardent proponent of such initiatives, लेकिन सनोबर बाग में आज़ाद भी है, पापा गिल भी है। आप बहुत से ऐसे उमूर पर कमिटीज़ में गौर ख़ौज़ करते हैं जहाँ someone has to be a devil's advocate। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं और हमारे लॉ मेकर्स बहुत हसास मौज़ूआत देखते हैं। अगर आप हर चीज़ टेलीविज़न पे बराह रास्त डाल रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी की ज़मानत कौन देगा? आप तौहीन रिसालत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, आप किसी और संजीदा मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको ये देखना है कि किस हद तक आप जाएंगे और किस हद तक आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपने जो सड़क पे शोरीदा ज़री है उसको नहीं देखना है बल्कि बहुत ठंडे मिजाज से मामले को देखना है। और हमने ये देखा है कि जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग हुई है तो मेंबरान पे बेइंतहा प्रेशर आया है कि जो सड़क की जज्बातियत है वो उसके साथ जाके खड़े हो जाएं, और अगर उन्होंने किसी भी सूरत में बालुग नज़री का मुजाहिरा करने की कोशिश की है तो सड़क से उन्हें बहुत ज़्यादा फॉल आउट आया है। सो इसको देखना पड़ेगा कि आप किस मामले को कहाँ ले जाएंगे। और अभी हमने हाल ही में हाउस की कार्रवाई दिखाना शुरू की लाइव। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो ये है, प्रेस गैलरी में जो कुछ हो रहा है उसको वो रिपोर्ट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सहाफ़ी का किरदार ख़त्म करके उसको हर चीज़ स्पून फीड शुरू कर दें। तो वो उन्होंने इसके ऊपर भी एतराज़ किया। तो इसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए कि कहाँ तक आप सहूलत देंगे और कहाँ तक आप अपने हाथ काट देंगे। जी मैं शामून साहब जो कहना चाह रहे हैं कि हाउस की प्रोसीडिंग्स और कमेटी की प्रोसीडिंग्स में ज़रा थोड़ा सर मैं let me put it, I absolutely agree with what शमून साहब said। जो मामले हसास नोयत के हैं, जैसे उन्होंने बड़ी मुतल्लिका मिसाल दी जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ सेंसिटिव रिलीजियस इशू पे बात होती है, तो हमने अपने रूल्स में इस चीज़ के ऊपर पूरा गौर करने के बाद कमेटी के चेयरमैन को भी ये इख्तियार दिया है कि वो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रोक सकते हैं। स्पीकर के पास भी ये इख्तियार है, बाय वोट मेजॉरिटी रोक सकती है अगर कमेटी के अरकान ये समझें कि ये लाइव नहीं जानी चाहिए। और उसमें कुछ इश्यूज भी हमने लिस्ट किए हैं जिनमें ये सेक्टेरियन, जिसमें ये रिलीजियस, जिसमें कुछ और इस तरह की हसास नोयत के मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं। लेकिन ये एक पहलू है, ये मुकम्मल पहलू नहीं। और अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग रोकेंगे तो जो इसके अंदर निखार आना है, जो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी है, जिससे आप अपने कंडक्ट के खुद अकाउंटेबल होंगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आप ये सारी चीज़ें रोक लेंगे। असेंबली के अंदर अगर कोई हेलोगनिज्म करता है और अगर कोई वहाँ पर ज़्यादती करता है, सिर्फ नारेबाजी करता है, तो लोगों को पता चलना चाहिए। अगर मैं असेंबली में एक डॉर्मेंट हूँ तो मुझे मेरे लोगों को पता होना चाहिए आई एम जस्ट अ डॉर्मेंट देयर।
और अगर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो दिस इज़ a fundamental right of the citizens of Pakistan to know that what I do on their paycheck, I am a creation of a vote and my voter has the right to know it. मुझे वहाँ पर अपनी कारकर्दगी उस तक पहुँचानी है, अच्छी या बुरी, हसासियत को रोकना है, दुरुस्त, उसको मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता. मैंने अपने ज़ाब्ते में वो डाल दिया है और उन पहलुओं को हम बहुत गौर से, वो जो मुतलका offices हैं, it is the Secretary General's office in our case, it is the Speaker's office, it is the Chairman Standing Committee's office, and then the whole committee as a whole has the right to stop it by the vote of majority, they can stop it. हमारी नज़र में ये एक ऐसी पोजीशन है जिसको जो the sentiment of the street जो है, जब आपने बहुत आपकी दूसरी बात भी मैं उसके साथ में उसकी हमायत में हूँ कि सेंटिमेंट ऑफ द स्ट्रीट ऐसी जगहों पर जहाँ पर आपने बतौर अहले हलोअत फैसले करने हैं, जहाँ पर दलील होनी है, तकरीर होनी है, जहाँ पर बजट बनना है, जहाँ पर आपने कानून बनाना है, वहाँ पर सड़क के जज्बात के साथ ये बात नहीं की जा सकती. दुरुस्त है. तो यही तो सर आपकी ability of creating a balance between that sentiment and the position where जहाँ पर अहले हलोअत इस चीज़ का फैसला करेंगे, पर ये सारी बातें अवाम के इस हक को जानने के हक को रोक नहीं सकती. So now shall I read the proposed decision by the Speakers Conference? जी Speaker साहब. सर मेरी इसमें just to add another 2 sentences, मैं शमून साहब से सर 100% I agree with him. Reason behind कि देखें सर, असम्बली के अंदर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बोलते हैं या वो जो एक्ट करते हैं, यानी हमारी हिस्ट्री में ऐसे भी मिसाल मौजूद है कि असम्बली में मेंबर्स कत्ल हुए, कुर्सियों से उठा के लोगों को एक दूसरे को मारा गया है, गालम गलोच हुई है. इसके जो असरात है वो असम्बली से बाहर जाते हैं. तो आम एक कॉमन आदमी को मैं नहीं समझता था कि बन के इससे कोई ऐसा बेनिफिट मिल रहा हो. फॉर एक साइड तो है, जिस तरह मलिक साहब ने कहा कि मेरे इलाके के लोगों को या जो मेरे पब्लिक मेरे पीछे, उनको पता होना चाहिए कि मैं असेंबली में बैठ के मैं कह क्या रहा हूँ, बोल भी सकता हूँ, बोलता भी हूँ, समझता भी हूँ या नहीं समझता हूँ. ये एक साइड ज़रूर है इसका तकरीबन, लेकिन मेरे ख्याल में जो नेगेटिव साइड है वो इसका इट इज़ मोर देन द बेनिफिशियल. तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है, आई मे बी रॉन्ग, और लोग इसको कमेंट भी कर सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो सेशंस की not going with. Just too sensitive आप. देखिए स्पीकर साहब, मलिक साहब ने ये क्लियरली कह दिया कि उन्होंने चेयरमैन को इख्तियार देते हैं. मलिक साहब ने तो क्लियर बता दिया है कि ये चेयरमैन को, कमेटी के चेयरमैन को ये इख्तियार है कि वो किसी वक्त भी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो बंद कर सकते हैं अगर कोई ऐसा सेंसिटिव इशू है. सर इसको सेंसर कौन करेगा? नहीं स्पीकर साहब, आपको भी पता होगा, मलिक साहब को भी पता होगा कि एनी कमेटी कैन होल्ड सेशन इन कैमरा का हो जाता है. वो कोई आपको मतलब इट्स नॉट ए इशू, और हम बड़ा रेगुलरली इन कैमरा सेशन करते रहते हैं, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हूएवर इज अपीयरिंग. ये बात हम इट्स नॉट ए इशू. लाइव स्ट्रीमिंग तो होनी चाहिए, लोगों को पता चले कि उनके रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में एंड सर ये मुझे कमेटी में अहमद इकबाल साहब हैज गिवन मी अ चिट, इसमें उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी की है. आपकी असेंबलियां अवाम से बहुत डाइवोर्स्ड हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग. ही इज राइट. We can get a lot of good work happen in assemblies. This will also create goodwill. आप बहुत काम करते हैं यहाँ पे, लोगों तक जाना चाहिए. सर चेयर, हम 10 साल से केपी असेंबली लाइव स्ट्रीमिंग पे, कोई अभी तक ऐसा इशू नहीं आया है. अब बड़े सेंसिटिव इश्यूज भी हम डिबेट करते हैं वहाँ. So supporting it, the forum agrees to adopt. इसको होना चाहिए जी, इस मुनाफकत खत्म होगी सोसाइटी में. Making legislative proceedings more accessible to the public, it is resolved that all the assemblies will ensure the audio and video recordings of their proceedings are made available for public access, both live and archived through appropriate platforms as desired, directed by the Speaker. Additionally, reports from all committees presented in the House will be uploaded to the official websites of the respective assemblies to further promote transparency and inclusive governance. These measures are intended to improve accessibility, reduce cost, and enhance
the overall efficiency and transparency of parliamentary operations. Adopted, sir. Holding of virtual sessions of legislatures during pandemic, other such problems, and allowing use of electronic notices instead of printed documents of all kinds. Balochistan. जी सर, ये असल में केपी का आइडिया था, लेकिन वो विड्रा हो गए सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में, फिर हमने अडॉप्ट किया। ये खासकर कोविड-19 में ये मामलात आ गए हैं, हम 50% पे भी चले गए हैं जी, सब असेंबलीज ने की जी हाँ, लेकिन इसके लिए रूल्स नहीं है। रूल्स में दो चीज़ें थोड़ा सा रूल्स नहीं सर, उसमें दो चीज़ें जो है वो कुछ आप लोगों की डिस्कशन चाहिए। एक ये है असेंबली मीन्स टू असेंबल टुगेदर फिजिकली, एक, और सेकंड ये वोटिंग, थर्ड ये है कि फिर टीएडीए के मामलात आते हैं। ये तीन चीज़ों को डिस्कस करते हुए रूल्स में किस तरह के अमेंडमेंट्स हम कर लें, ये फोरम इस पे डिसाइड करे, या सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस को या पिप्स की रिस्पांसिबिलिटी लगाएं। ऑनरेबल चेयर, इसके ऊपर सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन हुआ था कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। कोविड में हम ये सूरत हाल देख चुके हैं, खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है तो असेंबलियों का लाहेमल क्या होगा और हमारे रूल्स में उसकी क्या प्रोविजन होनी चाहिए। तो सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस ने डायरेक्ट किया था पिप्स को कि वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर एक रिकमेंडेशन जो है वो जमा करा दे, जो 3 महीने के अंदर होने वाली सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका जायजा लेकर अगली स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के सामने एक पूरा मैकेनिज्म इन the eventuality of any such mishap in future, कैसे असेंबलियों की कार्रवाई होगी, वोटिंग पैटर्न क्या होगा, अटेंडेंस कैसे होगी। टीएडीए का इशू है क्योंकि वर्चुअली अगर हो रहा था तो फिर ये भी इशू आ गया था कि हाउ वुड द मेंबर्स बी एंटाइटल्ड टू ऑल द एंटाइटलमेंट्स दैट दे हैव। तो इन सब का कोई एक वर्कबल मैकेनिज्म प्रपोज करेगी सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस। एग्रीड। अल्लाह करे पेंडेमिक आई ना जी। Forums and women's caucuses through legislation and rules, institutionalization होती है इनकी। एजेंडा है नेशनल असेंबली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। स्पीकर साहब, सर इसमें मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री फोरम जो बने हैं, जिसमें वुमेन कॉक्सेस भी है, उसमें यंग पार्लियामेंट्री फोरम भी है, और दीगर अभी आज बहुत सारे हमने फोरम क्रिएट किए हैं, उनके लिए कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अभी तो हमें नोटिफिकेशन के जरिए वुमेन कॉक्सेस और यंग पार्लियामेंट्री फोरम जो इसको चला रहे हैं, इसके पीछे कोई अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो नेशनल असेंबली में हमें पता है कि उनके पास भी नहीं है, तो और भी किसी प्रोविंस के पास शायद हो या ना, मुझे हमें नहीं पता। इस पे हमारा ये ख्याल था कि ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ताकि इट शुड बी अ परमानेंट फीचर ऑफ द एवरी असेंबली, क्योंकि ये नोटिफिकेशन के लिए होता है तो कोई भी असेंबली आके, कोई भी स्पीकर आके जो है वो उसको ख़त्म कर देगा या नहीं बनाएगा तो उसके लिए बाइंडिंग नहीं होगा। तो इसको बाइंडिंग किया जाए, इसको परमानेंट फीचर के तौर पे इसको असेंबली के उस पर लाया जाए, उसके अंदर। सलीम साहब जी साहब, इस पे हमारा भी कंसर्न है, बिकॉज ये पार्लियामेंट्री कॉकस जितने भी हैं, एसडीजी सेक्रेटेरिएट हैं, यंग पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं, ये सब साइलोज में बने हुए हैं इन एवरी असेंबली। देयर इज़ नो कनेक्शंस ऑफ देयर विद एनीवन। तो अगर आप इसको भी एक जॉइंट कर दें, सो दे गेट कनेक्टेड, यू नो, एंड दे नो, वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन सिंध नोज व्हाट इज़ हैपनिंग इन फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब knows what is happening, so everybody will know what is happening in each other's provinces and federal government initiatives, so it will become more productive. Abhi to they don't know what they are doing, they are making their own decisions, taking their own they have no knowledge what is happening overall in the country. इसके पीछे कानून साजी भी कोई नहीं है ना सर। मैं सर अर्ज करूं कौमी असेंबली ने सबसे पहले 2002 में इसके ऊपर कदम उठाया था जब यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम बना, और यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम में उस वक्त से 2013 में बिलाखिर हमने सेनेट को भी शामिल किया था। 2008 में विमेंस कॉकस बना, विमेंस कॉकस में भी सेनेट शामिल हुआ। सूबों ने इसके ऊपर देखना शुरू किया, उन्हें इसके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे।
جو وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کی دور کرتے رہے، اور اب یہ کنسنسس ہے کہ یہ بننے چاہیے. اسپیکر کے ڈائریکٹیو کے تحت ایسا ہو سکتا ہے ریزیڈوری پارٹس کے لیے. جو پیپر ہے میں مزید بات نہیں کروں گا، اس میں انڈین بیسٹ پریکٹسز ہم نے لکھی ہیں کہ کیا ہے اور کس طرح سے یو کے میں یہ فورمز بن رہے ہیں، وہ بھی ہم نے اس کے اندر دے رکھا ہے. جو بانڈوی والا صاحب نے بات کی، اسی کو ایڈریس کرنے کے لیے اب یہ سالانہ ایکسرسائز کی ہے کہ ہر اسپیکرز کانفرنس کی سائیڈ لائنز پہ نیشنل میٹ آف آل دیز فورمز ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان سارے فورمز کا ریگولر انٹریکشن صوبوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی جیسے آج آزاد کشمیر اور کے پی کے اسپیکر صاحبان نے اور سندھ کے اسپیکر صاحب نے بتایا کہ ینگ پارلیمنٹیرینز فورم آلریڈی ان کے صوبوں کا دورہ کر چکا ہے اور اب وہ پنجاب جا رہے ہیں. چائلڈ کوکس جا چکا ہے، چائلڈ کوکس بن چکا ہے. ویمنس پارلیمنٹری کوکس سارے صوبوں میں جا چکا ہے اور ان کے ساتھ ان کے لنکیجز بن چکے ہیں. نہیں مگر ایک منٹ، مگر دیکھیں، مگر آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے لنکیجز کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے کوکس کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے سیٹ اپ کی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری بڈی نوئنگ ایچ ادر. تو آپ کو تو پتہ لگ جائے گا کہ صوبوں میں کیا ہو رہا ہے، بٹ ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، کے پی کے کو پتہ نہیں چلے گا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. تو انٹل یو پٹ دیم ٹوگیدر، ایز آئی سیڈ سر نیشنل میٹ ہو رہی ہے. ہاں ایز آئی سیڈ نیشنل میٹ ہر 6 مہینے بعد پرپوز ہے، اور وہ نہیں بٹ propose doesn't mean anything نا شمون صاحب. It doesn't happen. So you must create a system کہ it happens. ہماری خود کانفرنس 10 سال کے بعد ہو رہی ہے تو آپ ان کی کیا بات کریں گے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہو. So try to create a framework that it happens. Otherwise تو it is just a کاروائی here, writing here and nothing will happen. No, thank you so much. یہ نہ تو کاروائی ہے نہ ہی کوئی اس طرح آپ شاہدہ ایک منٹ ملک صاحب شاہدہ آپ کریں پلیز، پہلے آپ کر لیں. تھینک یو سو مچ. کیونکہ جب سے یہ ابھی نیو شروع ہوا ہے، اس میں ہم نے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا تمام اسپیکرز بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو میں نے لیٹرز لکھا کہ اپنے اپنے اسمبلیز کے اندر کاکس کو فعال کیا جائے، ریفارم کیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اندر میری ملاقات بھی ہوئی تھی اسپیکر صاحب سے اور انہوں نے فوری طور پر جو ہے اس کو فارم کیا، اور اسی طرح بلوچستان میں فارم ہوا، میرے سامنے ہم لوگ نے وزٹ بھی کیا. کے پی کے کا جو مسئلہ ہے وہ سیٹس کے حوالے سے ابھی اس میں فارم نہیں ہو سکا ہے. پنجاب میں ہم نے لیٹرز بھی لکھا تھا، فارم بھی ہو گیا ہے، اور ہم ان کو مطلب مستقل انگیج رکھتے ہیں. جو ویمن پارلیمنٹری کاکسز ہیں صوبوں کے اندر، ان ممبرس کو اپنے ساتھ نہ صرف انگیج رکھتے ہیں، مستقل کانفرنسز، ورک شاپ، ہر طرح سے، تاکہ جو ہمارے پاس لیجسلیشن ہے جو صوبوں میں ہے، ہم اپنی بیسٹ پریکٹسز کو، بیسٹ ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں. تاکہ وہاں پہ پہلے کاکسز نہیں تھا، انہیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں کام کیسے کرنا ہے. اب جب کاکسز بنے ہیں تو وہاں پر آفیسز کا ایشو تھا، آفیسز مل گئے. جی بی میں بھی ہم نے فارم کیا تھا، اسپیکر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے جی بی میں بھی بنایا تھا، اے جی کے رہ گیا تھا، اور وہاں پر بھی ہو گیا. تو ہمارے لنکیجز بھی ہیں، ہماری شیئرنگز بھی ہیں، اور شاید ہم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ملتے ہیں تمام. تھینک یو جی اسپیکر صاحب. جی سر، یہ میں آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ضرورت ایک عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی، اور اس پہ پنجاب از دا فرسٹ ون، ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ ان ساؤتھ ایشیا، جس نے اپنے رولز میں اسٹیبلشمنٹ آف پارلیمنٹری کوکسز اینڈ کراس پارٹی فورمز ڈال دی ہیں. So our rule says that 235B، اور اس کی آگے ڈیٹیل ہے ساری، جس کو ہم نے بالکل، تاکہ کل کو کسی اسپیکر صاحب کے ذہن میں نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں بنانے یا ان کا اس طرح سے نہیں ہے، تو ہم نے اس کو رولز میں ڈال دیا ہے، مینڈیٹری کر دیا. اور کوکس کون سے فارم ہوں گے، کتنے ہوں گے، اب اس کی یہ جو مارجنلائزڈ ہیں، جس میں جن کی امپاورمنٹ کی زیادہ ضرورت ہے، جیسے مائنورٹیز کی ہے، ویمن کا ہے، چائلڈ رائٹس کا ہے، اسی طرح سے اور بھی اسپیشل سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں جن کے لیے ان کوکسز کی شدید ضرورت ہے، تو اس کو ہم نے اپنے رولز میں ڈال کے بنا دیے. ہمارے کوکسز جو اس وقت ابھی فارمڈ ہیں، اس میں انوائرمنٹ کا کوکس ہم نے بنا دی ہے، جو کہ بڑا اوور آرچنگ ہے. دے ہیو گاٹ، ہمارے ممبرز ہیں، پھر وہ ایکسپرٹس کو ساتھ لے رہے ہیں، اپنی میٹنگز کر رہے ہیں، اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جس میں
जितने भी एड प्रोग्राम्स हैं उन सब के साथ वो अपने अपने मामलात को देख के आगे चल रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें जो काबिल अमल तजवीज़ है वो तो अपने पहले रूल्स में आप इसको डालें, अमेंड करें और उसके बाद जैसे भी सेनेटर सलीम साहब ने कहा एक डायरेक्टरेट कायम होना चाहिए। डायरेक्टरेट बना दें। अब लेट्स से कि आप हमें नेशनल असेंबली में मेरी तजवीज़ क्या है, if I have a caucus, women caucus in Provincial Assembly Punjab, so I should have some partnership of that caucus of the National Assembly or the Senate, और वो documented होनी चाहिए, उसका मेरा एक बंदोबस्त लिखा जाना चाहिए। उसके तहत आपके किए गए काम या उनके किए गए काम एक दूसरे के साथ शेयर होने चाहिए, और एंड समथिंग बाई एनुअली, और आप इसमें कोई एक मीट का प्रोग्राम रख लें जो आगे चलता रहे, तो उसको थोड़ा लिख के फॉर्मलाइज कर लेना चाहिए। फॉर्मलाइज कर लें लिख के। इसमें एक डायरेक्टरेट जो है वो यहाँ फॉर्म किया जाए इस तरह, तो इसमें हमें सबको पार्ट उसमें इंक्लूड किया जाए, लिंकेज किया जाए, एक फ्रेमवर्क बना लें, रिपोर्ट इशू करें ईयरली रिपोर्ट इशू करें। Shall we move forward? इसके आखिर में फाइनल करो, वो कल फाइनल करो। Difference between committees and parliamentary structure, scope and limits? in writing हमने सबमिट कर दिया है, तो it is the विमेन कॉकस जो है वो 52% हमारी ख़वातीन हैं जो इसमें हैं। आप भी देखिए कि जो हालात गुजर रहे हैं, विमेन कॉकस बहुत सारी रजिस्ट्रेशन बना के भेजती है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। बहुत से किस्म के रूल्स बनाए हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से, जिन पर आजकल आप देख रहे हैं, टेलीविज़न पे भी देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके सिलसिले में आप लोग क्या करना चाहते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे बनाएंगे आप? फ्रेमवर्क बना रहे हैं उसमें, जिस तरह मलिक अहमद खान साहब ने, स्पीकर पंजाब असेंबली ने कुछ ऐड किया, सलीम मांडीवाला साहब सेनेटर ने कुछ ऐड किया है, तो ऑलरेडी डायरेक्टरेट तो है यहाँ पे, लेकिन उसकी लिंकेजेस के लिए उनकी मीटिंग्स एवरी 90 डेज़ होनी चाहिए या 60 डेज़ होनी चाहिए, वो सारा एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो इसमें इसको इंक्लूड कर देते, जो पॉइंट आपने कहा वो इंक्लूड करवा देते हैं। जी सर, लेकिन इसे ज़रूर एम्फसाइज कीजिए कि औरतों पे बहुत तशद्दुद हो रहा है, और वो आपकी बहनें हम लोगों की हैं, बेटियां भी हैं, और ख़ास तौर पे ये बहुत इस पर काम कर रही हैं, और लेजिस्लेशन चाहती हैं, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन। Bringing conformity to rules of procedures and conduct of business to strengthening committees by National Assembly. मुश्ताक साहब, नहीं ये छोड़ दें। अच्छा, बात हो गई पहले। सर इस पे बात भी बहुत डिटेल में सुबह से हो चुकी है, और ये जो एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी जनरल्स बन रही है, उनको ये टास्क दी गई है कि वो सारे को पढ़ के उन पे कंफर्मिटी लाएं। For government functionary toward legislator and its committees, KP Assembly. इस पे डिस्कशंस तो हो रही हैं स्पीकर साहब, सुबह से डिटेल डिस्कशंस हो गई हैं। स्पीकर साहब आगे करें। Conversion of adjournment motions into calling attention notices. AJK जी आपका है जी। It's not possible. अच्छा, ये सर ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि बाकी असम्बली में क्या है, लेकिन AJK असम्बली में हम स्पीकर अपने पावर इस्तेमाल करके तहरीक इल्तवा को तो जो उस पर तरबीर करता है, लेकिन रूल्स में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। समटाइम्स वो एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नोटिस की तरह के होते हैं, लेकिन उसको तहरीक इल्तवा के तौर पर लेके आते हैं। तो इस पे क्या किया जाना चाहिए सर, आपकी रहनुमाई लेना चाहते थे। स्पीकर साहब इसमें पिप्स ने एक स्टडी आपको दी हुई है, पेपर्स अगर आप देख लें, लेकिन कॉल अटेंशन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन एंड एडजर्नमेंट मोशन, और स्पेशल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन जिसपे आपको इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है, जिसमें हम सलीस उर्दू में कहें तवज्जो दिलाओ नोटिस। एडजर्नमेंट मोशन तो एक इमीडिएट एक्शन के लिए आपको चाहिए, जिसपे आपने हाउस को एडजर्न करके इमीडिएट उस पर डिस्कशन चाहिए। तो दोनों डिफरेंट हैं, इसको आप किस तरह चेंज कर सकते हैं? वी डोंट हैव एनी पावर इन द सिंध असेंबली रूल्स एंड प्रोसीजर्स।
अगर वो विड्रॉ कर ले प्रेस वो डिफरेंट टूल्स हैं, आप एक टूल को क्यों ज़ाया करना चाह रहे हैं कि जिसको कन्वर्ट करना है? दोनों डिफरेंट टूल्स हैं। जनरल मोशन भी एक टूल है, कॉल अटेंशन फॉर लॉ एंड ऑर्डर है। तेरी के बाद औक़ात किसी को अकोमोडेट करने के लिए ये बात की जाती है, एक्चुअली वो तरीके के अल्तवा बनती नहीं है। जब वो बनती नहीं है तो फिर किसी को अकोमोडेट करने के लिए तो कहते वो पढ़ के बात कर लेता है, उस पर जवाब दे देता है, दैट्स रीजन ओनली। स्पीकर और तो कोई ऐसी बात नहीं। स्पीकर साहब आप बात कर लें। should be converted into resolution. नहीं, इसमें छोटी सी Resolution अर्ज नहीं करते convert हो सकता। स्पीकर के बेहतर बेपनाह इख्तियारात होते हैं, इसमें आपको क्या, मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इधर हम कैपिटल में कैश टू कैश देखते हैं। और देखिए ये बाबर साहब ने, एक्सक्यूज मी, प्लीज बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं। बाबर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब स्पीकर साहिबान सब चेयर पे होते हैं तो अगर बात ही करने देनी है, फैसिलिटेट ही करना है मेंबर को, तो आप किसी को भी मौका दे सकते हैं। लेकिन आप दो रूल्स अपने एक चांस क्यों आप ज़ाया करना चाह रहे हैं? कॉल अटेंशन इज़ डिफरेंट, एडजर्नमेंट मोशन इज़ डिफरेंट। ये मैं अर्ज करता हूँ जी। हिस्टोरिकली जो एडजर्नमेंट मोशन थी, जो सिंध में, पंजाब में, केपी में, उससे थोड़ा डिविएट हमने किया। ये हम इंडिया से हमने इनकॉर्पोरेट किया, ये इंडियन जुरिस्डिक्शन से आया, कॉलिंग अटेंशन नोटिस। और कॉलिंग अटेंशन नोटिस में पहले था ये कि वज़ीर आला को खुद आना पड़ता था और हफ्ते में 2 दिन जो है वो इस पर मुख्तस होते थे, जिसमें वज़ीर आला खुद आकर इस पर जवाब दें। फिर प्रैक्टिस में हमने देखा कि वज़ीर आला नहीं आते, तो 10-15 साल की प्रैक्टिस के बाद ये हमने वज़ीर कानून को भी साथ कर दिया कि जी वज़ीर कानून है और ये दिस इज़ related to law and order only. This is just a police matter, calling attention notice. हमारे पास तो ऐसे adjournment motion is too serious a business, जिसको हम ये देखते हैं कि adjournment motion बहुत गलत प्रैक्टिस हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात स्पीकर AJK ने की है। adjournment motion जैसा इफेक्टिव टूल मतरूक होता जा रहा है अपनी हिफाजियत के एतबार से, कि हम उसमें, हमारे पास तो प्रैक्टिस ये बन गई कि एडजर्नमेंट मोशन मूव होती है, वो मूवर उसको पढ़ते हैं, हम वज़ीर साहब से कहते हैं जवाब मंगवाएं और फिर वो सालों साल ना जवाब आता है ना लगती है, तो वो तो ख़राब हो रही है। हमारे पास तो ये प्रैक्टिस, ये आपका अपना अपना तजर्बा है, देख लें सिंध कैसे। असेंबली, जी सर, जी प्लीज। नहीं, मैं तो अपनी बात कर दीजिए। अच्छा सर, सिंध असेंबली में कॉल अटेंशन इस तरह है हमारे पास कि कॉल अटेंशन रिलेटेड टू एनी डिपार्टमेंट, अगर किसी डिपार्टमेंट के साथ है, एजुकेशन का कोई क्वेश्चन है, कोई आपको हाउ फिशरीज एंड लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ का है, हेल्थ से रिलेटेड है, होम से रिलेटेड है, तो वो मिनिस्टर आएगा और ख़ुद उसको आंसर करेगा। इमीडिएट क्वेश्चन इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, एडजर्नमेंट मोशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अब इसमें देखें, हर असेंबली के अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं। वो मेरा ख्याल जैसे हैं अपनी अपनी सतह पे उसको हम ठीक करें। हम उस लेवल शुड पे नॉट बी ब्रॉट एज समथिंग जिसमें कोई यूनिफॉर्मिटी हो, लेकिन ये टूल्स इनइफेक्टिव नहीं होने चाहिए, इनको बेहतर करने की कोशिश करें और अपने तौर पे अपना रोल प्ले करें इसमें। Status of ruling of chair and difference between the rulings and directions of chair, AJK, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. जी प्लीज़ अगर आप बोलें। जी हाँ सर, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहूँगा। रूलिंग्स हमेशा दी जाती है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेवेंट रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ द हाउस। उसके बाद स्पीकर जो डिसीजन ले उसको रूलिंग कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिस में क्या आ रहा है आजकल हमारे यहाँ, तो काफ़ी सीरियस हवाले से हर मेंबर जो पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात भी वो करना चाह रहा हो तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे स्पीकर साहब से डायरेक्शन लेना चाह रहा हो और कहते हैं कि रूलिंग दे दें। बाकी सूबों में भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया है, वहाँ पर भी ये इशूज़ चल रहा है, इंक्लूडिंग नेशनल असेंबली में, कि वहाँ पर भी रूलिंग्स, डायरेक्शन ऑफ स्पीकर्स को भी रूलिंग कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इसी वजह से हमने ये कहा कि एक डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि रूलिंग्स क्या है, डायरेक्शंस क्या है, ताकि इस फोरम में तमाम स्पीकर साहिबान बैठे हैं, इसको डिस्कस कर लें कि एक सोल्यूशन निकल आए। मलिक साहब प्लीज़। मुश्ताक साहब हमें बता सकते हैं। इसमें सर हमारा भी एक बड़ा रूल क्लियर है सर, वो है 28 और 29। ये है डिसीजन एंड रूलिंग ऑफ द स्पीकर। ये हमने रखा हुआ है कि स्पीकर साहब हाउस में किसी इशू पर या अपने ऑफिस में बैठ के किसी फाइल पे जो
डिसीजन देंगे तो वो ख़त्म नहीं किया जा सकता है सिवाय असम्बली में रेजोल्यूशन के ज़रिए। और दूसरी सर जो है डायरेक्शंस की बात है वो हमने रूल 29 में डाली हुई है, all matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the speaker may from time to time direct। तो ये जब भी कोई ऐसा इशू अराइज हो जाता है जो हमारे इन रूल्स के अंदर नहीं है तो उसके लिए हम ऑनरेबल स्पीकर साहब से इस रूल के तहत राइटिंग्स में डायरेक्शन लेते हैं, डायरेक्शन को फिर इन रूल्स के साथ प्रिंट करके उसका हिस्सा बना देते हैं, और जब कभी हम अपने रूल्स में इमेंडमेंट करते हैं तो फिर उन डायरेक्शंस को इमेंडमेंट करके रूल्स का परमानेंट हिस्सा बना देते हैं। ये है हमारा सर डायरेक्शन। रही बात सर जो रूलिंग्स और इसके अंदर जो फ़र्क है, साफ ज़ाहिर है जब कभी भी कोई कंट्रावर्सी अराइज हो जाती है हमारे हाउस में किसी भी इशू पर जिसमें आपके क्वेश्चंस की एडमिसिबिलिटी है या कोई और क्वेश्चन आ जाता है, इंटरप्रिटेशन आपकी आ जाती है, तो वहाँ पर जो स्पीकर साहब डिसीजन देते हैं उसको हम रूलिंग कहते हैं। मींस एक ऐसी चीज़ जो आइन के अंदर मौजूद नहीं है, हमारे रूल्स में नहीं है, प्रेसिडेंट से नहीं है, और उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए जब हम दोनों पार्टीज़ को गवर्नमेंट और अपोजिशन या हमारे लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल से राय लेने के बाद किसी भी हम नतीजे पे पहुंचते हैं तो दैट्स कॉल्ड रूलिंग। हम इस हद तक इसको रूलिंग और डिसीजन के अंदर फ़र्क रखते हैं और डायरेक्शन। अब आप सर जिस तरह समझते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को डायरेक्शन देता है। अब देखें दैट मे बी रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन सब नॉट लाइक ये जो आप फरमा रहे हैं ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो एक ऑब्जर्वेशन होती है, एक डायरेक्शन होती है। अब बसा औकात हम स्पीकर साहब हमें कह देते हैं कि ये चीज़ करवा दें जी, सेक्रेटरी साहब ये करें जी, वो हमारे वो ऑब्जर्वेशन की उस सेंस में भी आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई डिसीजन या कोई डायरेक्शन दूसरी तरह क्यों डायरेक्शन सर देखें एक रूल्स के तहत डायरेक्शन है जो सिर्फ इन रूल्स को हमने रेगुलेट करने के लिए दिलवानी होती है। बाकी दूसरी जो है वो आप फरमा रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए ऑर्डर किया जाता है, तो उसको आप ऑर्डर कह सकते हैं। डायरेक्शन का स्ट्रिक्टली जब इनको रूल को इंटरप्रेट करेंगे तो उस सिलसिले में वो डायरेक्शन नहीं कहलाएंगे, वो आपकी ऑर्डर्स कहलाएंगे और कुछ ऑब्जर्वेशन। मैं मुश्ताक साहब प्लीज उठे शाह साहब, हमने सर ये इस तकलीफ से हम गुजरे, बार बार गुजरे, और इसका काफ़ी एक बहस तलब बात थी जो एक तस्फिया मांगती थी सर। तो हमने उसको अपने रूल 209 में डील किया है बाय डिसीजंस, रूलिंग्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द स्पीकर। उसमें हमने ये तीनों एम्बिग्विटीज़ को क्लियर कर लिया है कि जो रूलिंग है वो तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पे रूलिंग है, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स रूल्स से रिलेटेड ही हो सकते हैं जहाँ पर कहीं प्रोसीजरल बेज़ाब्तगी इजलास की कार्रवाई में हो रही है तो वो तो रूलिंग्स डील कर लेंगी। और डिसीजंस एक बड़ी जेनेरिक टर्म है जिसको हमने जेनेरिक ही रहने दिया है, और उसमें हमने कोई वो डिसीजंस जिसमें किसी भी पार्लियामेंट्री टूल के नतीजे में, किसी भी बहस के नतीजे में अगर कोई चेयर डिसीजन देती है तो उसकी अमल दरामद के लिए हमने उसे किसी न किसी ज़ाब्ते में डालकर उसको हमने हुकूमत के साथ उसका एक सिलसिला कार भी तय कर दिया। तो अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो मेरा ये ख्याल है कि अपने रूल्स को, रिस्पेक्टिव असेंबलीज अपने रूल्स में आपका ये अपना इख्तियार है, इसमें आपने किसी हुकूमत से नहीं पूछना, किसी एग्जीक्यूटिव नॉड की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपकी अपने हाउस ने अपने लिए रूल्स अडॉप्ट करने हैं, और जितना इख्तियार आपका हाउस आपके स्पीकर को देना चाहता है ये आपकी सौंपदीद है। मैं सर एक रेलिवेंट अपना भी पढ़ दे तो जिस तरह आपने फरमाया है सर, हमारा रूल है स्पीकर टू डिसाइड पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर। A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such articles as regulate the business of the assembly and shall raise a question which is within the cognizance of the speaker। ये चीज़ें हमने आज जिस तरह फरमा रहे हैं अपने रूल्स में तो डाली हुई हैं, जिसमें ये डिसीजन और ये सारी चीज़ों का हमारे यहाँ काफ़ी एक्सप्लेन किया है। जी हाँ मुश्ताक साहब, जब इंटरप्रिटेशन की बात आ जाए, जब स्पीकर डिसाइड कर लें, इस डिसीजन को आप लोग क्या कहते हैं? अब देखिए एक चीज़ को जब आपने डिसाइड कर दिया तो वो आपका रूल्स का हिस्सा बन जाता है। वो प्रेसिडेंस जिसको हम कहते हैं कि एक चीज़ आज हमारे रूल्स का हिस्सा नहीं,
लेकिन आपने रूलिंग दिलवा कर या उसकी एक्सप्लेनेशन करवा के कोई डिसाइड करवा लिया, डिसीजन आ गया, डायरेक्शन आ गई, तो आपको आप पर प्रेसिडेंट्स के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपनी पावर्स फ्यूचर के आने वाले स्पीकर्स भी इस्तेमाल करते रहेंगे। एज ए प्रेसिडेंट्स हम उनको हमेशा तक कोड करते रहेंगे जब तक कि आने वाले स्पीकर उसको रूल आउट ना करें। रूलिंग मींस यस सर, रूलिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चले जाइए। माइक खोली। ये आइटम नंबर 22 है जी, डिफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कैलेंडर पार्लियामेंट्री ईयर एजे के जो सेक्रेटरी असेंबली एजे के ये आइटम नंबर 22 को एक्सप्लेन करें जी। ये डिफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कैलेंडर एंड पार्लियामेंट्री ईयर्स। इसमें यह है कि क्योंकि ये हमने एजे की असेंबली की तरफ से आया हुआ है, क्योंकि किसी भी असेंबली में चेयरमैन सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली और एजे की असेंबली में ये किसी ना रूल्स ऑफ बिजनेस में ना आइन के अंदर लिखा हुआ है कि ये कैलेंडर ईयर जो असेंबली का कब से स्टार्ट होगा। ये फॉर्मली देखा जा रहा है कि रिटन फॉर्म में किसी जगह नहीं है कि ये कब से होगा, तो इसलिए ये हमने इसमें किया था कि इसका कोई डिसीजन हो जाए कि फलां डेट से असेंबली हो या ना हो, जब भी हो, लेकिन इसका कैलेंडर यहाँ से स्टार्ट हो। ये हमारे यहाँ तो रूल 46 सर है, जिसमें हमने एनुअल कैलेंडर का जिक्र किया हुआ है सर। उस वक्त हमारे स्पीकर साहब थे सैयद फ़खर इमाम साहब। उस वक्त ये चलता था कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर 1 जनवरी से स्टार्ट करते थे पार्लियामेंट्री ईयर। तो हमारी असेंबली आई थी, एक रूलिंग दी थी कि जिस दिन से आपका पहला दिन होगा ओथ का, तो उसी दिन से एक तो आपके 5 साल स्टार्ट हो जाएंगे, नंबर 2 आपका पार्लियामेंट्री ईयर भी उसी दिन से ही काउंट होकर उसी दिन पर ख़त्म हो जाएगा। उससे 85 से लेकर आज तक हम इस प्रैक्टिस पे फॉलो करें। अमेंड करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो उसमें आप इसमें लिख दें, आप रूल्स एंड प्रोसीजर्स में अमेंड कर सकते हैं। एनुअल कैलेंडर हमारा रूल है 46, उस तरह की तर्ज पे आप बना सकते हैं। Nomination of panel of chairmen in absence of a speaker and deputy speaker on the very first day of each assembly session. बलूचिस्तान। जी सर, इसको थोड़ा मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा। इस प्रोसेस से अभी रिसेंटली पंजाब असेंबली वाले गुजरे, उन्होंने अपनी इस रूल को भी अमेंड किया है, लेकिन इसमें फर्दर एक और चीज़ हमने प्रपोज किया है। यहाँ से अगर वेट होता है बाकी असेंबलियों में भी, और हम अपनी असेंबली में फिर अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। ये वर्डिंग वर्किंग पेपर की 48 पे हमने प्रपोजल भी दी है, वो अगर सामने रखा जाए ताकि इस पे डिसीजन आ जाए। यहाँ पर हम प्रपोजल दे रहे हैं, द स्पीकर और इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पीकर द डिप्टी स्पीकर शेल amongst the members a panel of not more than 4 chairpersons, and in the absence of speaker and deputy speaker, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. प्रोविजो देखें, प्रोविजो में जो हमने दिया है, provided that if in case panel of chairperson has not been nominated for any reason before the commencement of a session, then the panel of the last session shall deem to continue. ये प्रोविजो जो पंजाब असेंबली से हमने आइडिया लिया, और ये प्रोविजो मजीद डाल के इस पे हम डिस्कशन के सामने रखना चाह रहे हैं। हम तो जा रहे हैं कि हम अडॉप्ट कर लें और रूल में अमेंड करा लें, लेकिन इसमें अगर मजीद कोई लीगल सकते हैं सर, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हम करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें मजीद अगर एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाए दे सकते हैं। इसके अंदर हमारे यहाँ तो यही जिस तरह आपने फरमाया है, हमारा भी रूल 13 का सब रूल 2 है, तो जो थोड़ा सा इसके अंदर भी वही इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है। कह रहे हैं कि इफ एट एनी टाइम एट अ सिटिंग ऑफ द असेंबली neither the speaker nor the deputy speaker nor any member on the panel is present, the secretary shall so inform the assembly, and the assembly shall by motion elect one of the members present to preside at the sitting. जी हाँ, ये तो हमारे यहाँ आज तक ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं हुई है, तो सेनेट ने एक दफ़ा किया हुआ है तो वो इसको ही फॉलो कर रहे हैं। ये हमारे पास सब रूल पड़ा हुआ नहीं, हमारा भी है, ये तो एग्जिस्टिंग है, लेकिन हमारे सेनेट में ये प्रेसिडेंट्स हो चुका है। हमारे सेनेट ने इस रूल को फॉलो करके आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं सर, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरप्रेट इन्होंने इंटरप्रेट what if the government fails to indicate report back necessary consent within a period of 1 month in case of private members bill? बलूचिस्तान। प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है यहाँ पर। जैसे खासकर मनी बिल प्राइवेट मेंबर्स के आते हैं तो हम डिपार्टमेंट्स कंसर्न को फॉर कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट के लिए भिजवा देते हैं, वहाँ पर वो डंप हो जाता है, कोई वहाँ से रिपोर्ट बैक नहीं आती। अभी रिसेंटली हमारा
हमारा एक प्राइवेट मेंबर है शाहिदा रूफ साहिबा, उसका एक प्राइवेट मेंबर बिल है हमने भिजवाया है, तकरीबन 4 से 5 महीने होने को हैं, डिपार्टमेंट से कोई जवाब नहीं आ रहा। इसके लिए कोई मैकेनिज्म हो ताकि कम से कम गवर्नमेंट से विद स्पेसिफाइड टाइमिंग या स्पेसिफिक। जी मुश्ताक साहब। तरीके ये हमारे यहाँ भी ऐसे होता है। मैं लीडर अपोजिशन था तो मैंने 4 बिल जमा कराए। एक स्टूडेंट यूनियन वाला बिल तो मैंने किसी से करवा लिया, बाकी 3 बिल अभी तक उधर ही पड़े हुए हैं। तो अब वो उसको गवर्नमेंट ने टेक अप ही नहीं किया, तो इसको सर इसके मामले में जिस तरह के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि जब भी आपने कोई मनी बिल प्राइवेट मेंबर बिल के हैसियत से इंट्रोड्यूस करवाना है तो फेडरल गवर्नमेंट की प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 10 दिन का नोटिस पीरियड होता है, और जब प्राइवेट मेंबर बिल हमारे या नो करे हम उसको फेडरल कैबिनेट में लेकर जाती है और वहाँ पर डिसाइड करवाती है कि इस बिल को हमने जब ये हाउस में इंट्रोड्यूस होने लगेगा तो अपोज करना है या सपोर्ट करना है। तो ये मिनिस्टर खुद कंसर्न मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री अफेयर, इन तीनों को भेजते हैं, क्योंकि ये तीनों ने बराबर साइमल्टेनियसली एक्शन लेने होते हैं। लिहाजा इसमें हम कोई वेट नहीं करते हैं, सिर्फ हम 10 दिन का नोटिस पीरियड पूरा करते हैं। करने के बाद हम प्राइवेट बिल को इंट्रोडक्शन के लिए रख देते हैं, एजेंडे पे रख देते हैं। दिनों तक आप लोग वेट करते हैं या गवर्नमेंट के पास? हम 10 दिन के बाद गवर्नमेंट हम मनी बिल की बात कर मनी बिल के लिए मनी बिल इज डिफरेंट। उसका हम हमेशा वेट करते रहते हैं जब तक अप्रूवल ऑफ कैबिनेट हम नहीं उसको हम उसको इवन एडमिट नहीं करते हैं, चूंकि वो आइन की रिक्वायरमेंट है। हम उसको आगे हम नहीं कर सकते। कोई बाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप उसमें। ये देखिए आइनी रिक्वायरमेंट है, इसलिए मजबूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें बाइंडिंग है, आप नहीं कर सकते जब तक कैबिनेट का अप्रूवल ना हो। ठीक, दिस इज व्हाई हम इसको अपने रूल्स में भी नहीं डाल सकते। Distribution of mandatory days of sessions between requisition session and government sessions. जी सर इसमें यही है कि जी सेशन आर्टिकल 54 के तहत समन होता है या आर्टिकल 127 के तहत होता है। तो बाइंडिंग तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि 100 डेज प्रोविंशियल असेंबलीज के करने हैं, लेकिन बीच में जो हमारे पास तो रेक्विजिशन के काफ़ी सारे सेशंस 20, 25, 30 आ जाते हैं। तो उसमें ज़रा वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ये आइटम हमने रिकमेंड किया था। तो फिर इसमें मेरा हाल प्रपोज जो डिसीजन वो भी नज़र आ रहा है कि वो एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज़ के फोरम पे ये डिस्कस होगा एंड देन वो उस पर फीडबैक देंगे इसको, इस पे सारा हमें गाइड करेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। वैसे सेक्रेटरी साहब 100 डेज पूरे करने हैं प्रोविंशियल असेंबलीज ने, आपने भी हमने भी सर, और उसमें अगर अपोजिशन की तरफ से अगर 100 डेज लेट्स सपोज हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर अपोजिशन ने उस पर रिक्विजिशन के लिए कहा तो उसके ऊपर अगर ज्यादा भी दिन आ जाए उसमें तो कोई मजाइका नहीं, कोई इशू नहीं है। ज्यादा पे तो कोई मजाइका नहीं, 150 कर ले बेशक। तो उसमें लेकिन आप इसमें पूछना क्या चाहते हैं? अगर ये 100 डेज आप पूरे ना करें तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट फिर क्या होगा? होता तो फिर भी कुछ नहीं, इसकी भी कोई तो वहाँ पे कोई होता तो फिर भी कुछ नहीं, कुछ नहीं होता सर। बाज़ औक़ात नहीं भी होते जी, रिक्वायर्ड डेज पूरे नहीं होते। हो रही है ना जी हाँ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए कि 100 डेज के बजाय आप 60 डेज करते हैं, तो फिर क्या होगा? ये एम्बिग्यूटी है। ये सर बेसिकली अगर आप कोई एम्बिग्यूटी की बात करें ना तो सर आइन के अंदर अगर आप देखें ना सर, तो पूरा आइन अगर पढ़ेंगे तो उसमें सिवाय आर्टिकल 6 में कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करें, हेल्ड इन अबेंस करें, सबवर्ट करें, इसके अलावा पूरे आइन में किसी भी काम के ना करने पर कोई सज़ा नहीं दी गई है, तयन नहीं किया गया। हाँ, बल्कि आइन ने पूरे आइन ने एक सहूलत दी है आर्टिकल 254 के रूप में कि एक काम जो आइन ने कहा था कि आप स्पेसिफिक पीरियड में करना था, आप उसको कर लेते हैं तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं बल्कि वैलिड कर दिया। सजा कहीं भी नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। चीज है सजा सर, उसके बाद 100 दिन के बाद आप तो नहीं आइन ने सजा ये दी है सर कि अगर आपका कोई प्राइम मिनिस्टर आप हटाना चाहते हैं तो सजा डायरेक्ट आप रिमूव करके स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, प्रेसिडेंट को, इसके अलावा आइन ने कोई सजा नहीं दी है। आप पूरे के पूरे को हटा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं आप उसको एक दिन की सजा भी आइन ने नहीं रखी। इस पे कोई ना कोई इस पे कोई डेलिब्रेशन होनी चाहिए
होनी चाहिए, ये क्या किया जाना चाहिए इसमें? स्पीकर साहब, सेक्रेटरी साहब, अगर ये जिस तरह सेक्रेटरीज का उसमें काउंसिल में ये डिसाइड होगा सर, तो इसमें जो क्रिएशन ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ लेजिस्लेचर्स पूरे आइन को करेंगे। इट्स बाय नेशनल असेंबली। क्या चीज़ सुबह से इस पे बात हो रही है, ये तो आपके सामने प्रपोजल है, तो ये अडॉप्ट तो अडॉप्ट करवाइए। अब ये एजेंडा आपने आखिर में क्यों रखा हुआ है? शरारत की हुई। Constitution of implementation and follow-up committees. ये सेक्रेटरी कमेटी के साथ, सेक्रेटरी एसोसिएशन के साथ इंटरलिंक्ड है। हाँ जी, उसी के साथ क्लब है जी। ये दोनों उसके साथ हैं जी। Holding of speakers conference, the last agenda of the day. Annually, it's written only speakers conference. Yeah. It's not written annually here, but obvious, it's bit obvious कि annually होनी चाहिए ज़रूर। इसका तो सब सुबह से इस पे बहस हो रही है कि हर साल होनी चाहिए। अब इसको अगले साल कौन होस्ट करेगा ये कल डिसाइड होगा। ये डिसाइड होगा, ये पहले डिसाइड हो चुका है जी। एजे के इट स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेटिकली देयर विल स्टार्ट। अच्छा, डायरेक्टर जनरल साहब कह रहे हैं कि ये अल्फाबेटिकली उस पे होगा, तो दो भी रखे ना, साल में दो भी हो सकते। जी एजेंडाज आज के सारे पूरे हो गए। वील मीट अप टुमारो। यहाँ पे सेशन चलवा लिया।